हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हर वीक हम लोग ट्राई करेंगे कि एक पैनल डिस्कशन हो जाए डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक डायरेक्ट टैक्स से लिया गया है, असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड अपील अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने जीएसटी के बारे में किया था और 7th को आने वाले 7 तारीख को 7 अप्रैल को संडे को हम लोग 8 PM पैनल डिस्कशन अगेन जीएसटी के ऊपर करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में पहले हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनसे इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 4-5 मिनट में वन बाय वन लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेशन। स्टार्ट करते हैं हम में ब्रिजेश ग्रोवर सर से, जिन्होंने नोकिया कंपनी में बहुत दिनों तक काम किया है और सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे सर। Hi, my name is Brijesh Grover, and formerly I worked with Nokia. I was there for good 15 years and working in various capacities in the role of cost management and overall operations management. These days, I am heading towards consultancy, so it's my start off into my own things. I'm more of into investment management and all that stuff. My corporate career, although lasts beyond these 15 years in Nokia, I was with other companies. Like I started my career with Apollo Tires, worked with Dunlop India Limited during their IFR and PIFR days. So the experience is varied on various statutes, etc., which was related to revival of the companies as well as taxation matters. थैंक यू। थैंक यू सर, ब्रिजेश सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जिंदल सर से कि सर अपना इंट्रोडक्शन। Hello everyone, and thank you Sandeep ji, International Navodaya Chamber of Commerce for inviting me on this panel discussion. मेरा नाम सौरभ जिंदल है एंड मैं लास्ट 20 इयर्स से प्रैक्टिस सीए प्रोफेशन में प्रैक्टिस में हूँ। मेनली डोमेन हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन का है। हमारा ऑफिस या निर्माण विहार दिल्ली में हम लोग हमारा ऑफिस है एंड हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ सर। अब मैं प्रमोद अग्रवाल सर, जो कि गेल इंडिया में वर्किंग है, सर कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में। Sure. Thank you, Sandeep. And good evening, everyone. My name is Pramod Agrawal. I'm a CMA and a law graduate, also a company secretary. So I qualified in December 2005, and I'm having corporate experience of around 18 years. Presently, I'm working with GAIL India Limited, that is oil and gas PSU, and working in field of direct taxation. So my total experience is 18 years, and tax is my passion. So in direct taxation, I'm only looking after direct taxation, including international and transfer pricing. So this is all about, and happy to see you all. And I believe this panel will, through this panel, I'll learn a lot. Thank you, Sandeep. थैंक यू प्रमोद सर। नो रिक्वेस्टिंग जया मैम, प्लीज इंट्रोडक्शन। Sure, sir. Thank you, Sandeep ji, and good evening, everyone. So I am CA Jaya Krishna Kapoor, and I actually feel privileged to be part of this panel. And I am being a direct tax professional, I've been indulged into direct tax consultancy since past more than 6 years now after qualification, and pre-qualification also I was majorly looking into direct tax litigation and consultancy as well. Currently I am working with a big four, and so looking forward to this discussion today, and I hope that I can give my inputs and this will be beneficial for the audience, and definitely I am looking forward to learn great things from the panel here as well. Thank you. थैंक यू जया मैम। संगम अग्रवाल सर, एक बार फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑडियंस के लिए। Thank you so much, Sandeep ji. Friends, myself, CA Sangam Agarwal. I qualified my CA in 2009 and I did my articles from Thakur Vedanta Iron Company.
And post articleship, post CA qualification, I joined a company, IFCO Tokyo Insurance Company, for 1.5 years. And from there, after 2012, I am doing my continuous practice till the date. So currently my core area of working in tax litigations. And apart from that, currently I am regional council member as well from ICAI from Northern region. So this is my profile, basic introduction. Over to Sandeep ji. सर मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आज का सेशन होस्ट करने के लिए संगम अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूं। Thank you, sir. Thank you so much. So I think introduction part is over, Sandeep ji. यस सर, यस सर। Okay. So friends, as we know that right now assessment year 20 to 23 is going on, and tomorrow is the last date for issuing order, and maximum cases are doing under faceless, and apart from 148 assessment is also going on. So this is very crucial time to make our participant to understand what kind of assessment and reassessment are going on, what are the latest provision under section 148, because earlier 148 is totally different and now 148 is totally different. Although there are lots of Supreme Court judgment which actually nourish and but I should use the word, the earlier 140 is when a child, but after getting so many judgment for 148 it become actually adult. So through today's discussion we will understand what actually 148, in what cases 148A is applicable, and in one cases 148A is not applicable. And apart from that, about the penalties and the appeals part also, because when, as we know that nowadays we are getting an order in which initiation of penalty under section 270A are very common, and apart from that, in some cases 271AA is also imposing by the assessing officer while passing the assessment order. So we will also discuss some key points about that also, and later on we will discuss the appeal part, because friends, as you know that CIT appeal is the first appeal. Thereafter we can go for the ITAT. Nowadays we have CIT appeal in two parts, JCIT and CIT. So that we'll also discuss. And after CIT appeal we can go in ITAT, thereafter High Court and Supreme Court. These are the hierarchy which we need to follow. So let's understand what is the assessment and reassessment from our speaker CS Saurabh ji first. What is different between assessment and reassessment? Nowadays section 148 is merely using for the assessment, not only for reassessment. Earlier what we see that 148 is a special section which is used in a very uncommon way, but nowadays 148 become a very common section to do assessment and reassessment both. So Saurabh ji, I request you, please put some light on section 148 before and after. Over to you. थैंक यू संगम जी। सौरभ सर, संगम सर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो MSME और न्यू स्टार्टअप है, जहां एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है और उनको थोड़ा फैमिलियर ज्यादा होते हैं हिंदी से, तो यदि हिंदी में कम्युनिकेट करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा सबके लिए। जरूर। थैंक यू संगम जी। बेसिकली 148 और 143 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो मेजरली असेसमेंट्स किए जाते हैं वो दो सेक्शंस में है। 143 में असेसमेंट्स है एंड 148 में असेसमेंट्स है। 143 में रेगुलर असेसमेंट्स, जिसको हम रेगुलर स्क्रूटनी असेसमेंट्स बोलते हैं, वो होते हैं जहां पर हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न के बेस पर जिस फाइनेंशियल ईयर में हम रिटर्न फाइल करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के अगले ईयर में ही हमारी रिटर्न को में से कुछ पैरामीटर्स, जो कि जनरली हम कास बोलते हैं इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर एडेड सेलेक्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर हमारी रिटर्न्स में से कुछ रिटर्न्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और सिलेक्शन के बेसिस पर फिर उसका असेसमेंट किया जाता है। दीज आर वेरी रेगुलर टाइप ऑफ असेसमेंट्स जो कि एवरी ईयर चलते रहते हैं। हालांकि आज की डेट में इनकम टैक्स में तो एवरी ईयर के एवरी मंथ एवरी डे ही असेसमेंट चल रहे हैं, बट जैसा संगम जी ने कहा कि आज की डेट में 148 एक बड़ा मेजरली इश्यू हो गया है, तो 147 एक जो असेसमेंट हमारे रेगुलर असेसमेंट से रह जाते हैं, क्योंकि रेगुलर असेसमेंट को सेलेक्ट करने का सर्टेन क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया अगर किसी वजह से कोई रिटर्न वहां पर सेलेक्ट नहीं हुई या डिपार्टमेंट के पास में बाद में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट के इंटरनल एंड आउटर रिसोर्सेज हैं,
वहां से अगर कोई भी डिपार्टमेंट को कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर असेसिंग ऑफिसर ये चाहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर केस में कुछ इनकम ऐसी है जो कि असेस होने से रह गई है, उस केस को वो 147 के थ्रू असेस करते हैं। 1/4/2021 से पूरी की पूरी 147 की पूरी प्रोसीजर चेंज हो गई है। 1/4/2021 से पहले की जो प्रोसीजर थी वहां पर रीजन्स टू बिलीव नाम की कॉन्सेप्ट हुआ करती थी कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन्स टू बिलीव होंगे और उन रीजन्स टू बिलीव के बेसिस पर फिर वो एसएससी को नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद में एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करेगा एंड रीजन्स टू बिलीव की कॉपी लेगा, ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, असेसमेंट प्रोसीजर्स चलेंगी। बट 1/4/2021 से सारी की सारी प्रोसीजर्स को एंटायरली 148 की प्रोसीजर्स को चेंज करके अब रीजन्स टू बिलीव की जगह वहां पर पूरा 148A की प्रोसीजर आ गई। अब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन्स टू बिलीव। अब आ गया है देयर आर इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट देयर आर सम इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर अब कोई इनकम को असेस करना चाहता है। नाउ अब डिपार्टमेंट ने लॉ में ही ये लॉ मेकर्स ने चेंज कर दिया और 148A एक सेक्शन ला दिया जहां पर अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इनकम असेस होने से रह गई है तो उसमें 148A सेक्शन में ही पहले ही असेसिंग ऑफिसर एसएससी को एक सो कॉज नोटिस भेजेगा। सो कॉज नोटिस में मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 30 डेज का टाइम सो कॉज नोटिस में अलाउ किया जाएगा। एसएससी को इंफॉर्मेशन की डिटेल्स दी जाएंगी कि हाँ आपकी ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपकी इनकम असेस होने से रह गई है, आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं, आपके पास में कोई एविडेंस है तो आप उनको मेरे सामने रखिए ताकि अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन मेरी गलत है, आपकी ये इनकम असेस हो चुकी है या इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, देन हम उस केस में इस इनकम को छोड़ देंगे, अदरवाइज फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे। एसएससी उस 148 जी सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, एज यू राइटली सेड कि जो हम पहले वो जजमेंट के बेसिस पे जो है वो कॉल कर लेता होता था कि मैं जो है आगे नोटिस दूं या ना दूं, मींस जो असेसमेंट बेस्ट जजमेंट बेसिस पे होती थी, उसके पीछे आपने कहा कि तथ्यों का होना जरूरी है। वो तथ्य कहाँ से आते हैं उसके बारे में आपने कुछ हल्का फुल्का कहा, बट कैन वी हैव सम कंक्रीट पॉइंट्स, सम एग्जांपल्स कि पता चले कि वो जो है वो कहां से आइडेंटिफाई करता है? सर ये चीज, ये वर्ड भी की ये जो इंफॉर्मेशन विच विल सजेस्ट, तो ये जो सजेस्ट है ये भी सेक्शन 148 में डिस्क्राइब किया हुआ है। ब्रॉड पैरामीटर्स वहीं पर ही लिख दिए हैं कि हम किन किन केसेस में ये मानेंगे कि असेसिंग ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर मेनली जैसे 143 का असेसमेंट हो गया, असेसमेंट के बाद में डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट होता है सारी की सारी फाइल्स का, या कोई भी और दूसरा ऑडिट जिसमें कोई भी असेसिंग, जिसमें कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर को लगता है कि ये असेसमेंट ठीक नहीं हुआ है, जिसको हम ऑडिट ऑब्जेक्शन कहते हैं। अगर कहीं भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया है देन उस केस में वो ये मान लिया जाएगा ये रीजन्स टू सजेस्ट आ गए उसके पास में इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट सम इनकम हैज एस्केप असेसमेंट। इसके अलावा जैसे कि रेड केसेस हैं, जहां पर रेड हुई है, जहां पे सर्वे हुए हैं, वहां पे डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट मान लेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कि असेसमेंट होने से रह गया। तो ये भी सेक्शन 148 में डिफाइन कर दिया है ताकि कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी या कहीं भी कोई एक 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 उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स ना हो, उनके पैरामीटर्स वहां पर डिफाइन किए हुए हैं। हाँ, वन पॉइंट इज वेरी क्लियर कि कहीं रेड हुई है तो मींस समथिंग रिलेटेड टू सर्च, सीजर, या उसको जो है हम सर्वे कह सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी हुआ है तो उस सिनेरियो में वहां से निकल कर आया। उसके अलावा अगर कहीं से ऑडिट में कुछ निकला है, ऑडिट मस्ट हैव बीन रिलेटेड टू पास्ट ईयर्स या ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एसएससी फॉर दिस ईयर, जो शायद उसने फाइन प्रिंट्स पढ़े तो उसमें से उसे कुछ फर्दर क्वेश्चन निकल के आए, दैट माइट हैव बीन वो शायद सीबीडीटी के रूल्स के अगेंस्ट हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुड दैट बी द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? यस एक सीएजी ऑडिट होता है,
सारी हाँ, एक गवर्नमेंट सीएजी ऑडिट होता है। तो बेसिकली CAG मैंने ये audit, 3 जी। या 4 चीजें जो हैं कहीं पे आर्टिकुलेटेड देखी थी। सो सिंस आई एम मोर ऑफ एन इंडस्ट्री पर्सन, मतलब जो अदर Yes, साइड ऑफ द बेंच होता है, जहां पर हम yes, डिटेल्स में डिस्कशन आप लोगों से ही लेकर आगे समझते हैं कि हुआ क्या यार, हमारा केस क्यों फंस yes, गया। yes, yes, दैट इज व्हाई yes, आई yes. वांटेड मोर ऑफ एलैबोरेशन ऑन इट फ्रॉम योर साइड, जो मैं पहली बार में शायद समझ नहीं पाया था ढंग से। सो सर थैंक इसमें यू मैं सो भी मच थोड़ा फॉर प्रोवाइडिंग इट। Yes, ब्रिजेश yes. जी मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, जैसे सौरभ जी ने बताया कि इसमें जो मेन रीजन होता है ना, एक ऑडिट तो होता ही है, डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट भी होती है, उसके अलावा सीएजी ऑडिट्स भी होती है। उसके अलावा आपकी अगर फर्दर ईयर्स की कोई असेसमेंट भी ओपन है, वहां भी अगर कोई पॉइंट ऐसा निकल के आता है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि पास्ट में भी देखना जरूरी है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन होता है 148 में ओपन करने का। उसके अलावा जैसे अगर सिमिलर इंडस्ट्री में भी कोई ऐसे पॉइंट या कोई मार्केट में ऐसा पॉइंट आया है जिसपे सारी कंपनीज ही बेनिफिट ले रही थी, तो उसके बेसिस पे भी कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडमली डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ कंपनी वो केसेस ओपन कर देते हैं, अगर उन्हें लगता है ये सिमिलर इशू वहां भी हो सकता है। तो ये सब Okay. कॉमन Yes. इश्यूज ही हैं। उसके अलावा आजकल जो सिस्टम बेस्ड चेकिंग जो है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ट्रेल्स बनाए हुए हैं जो सिस्टम बेस्ड ही चेकिंग कर रहे हैं, जो सारे ट्रांजेक्शंस आपके कस्टम जीएसटी सब चीजों को इंटरनली सिंक करते हैं बैक एंड पे। सो वहां से भी अगर कोई वेरिएशंस भी निकल के आता है किसी भी केस में, तो भी वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो जाता है 148 में ओपन करने का। तो इस टाइप ओके, के बहुत यू मीन टू से कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मेरे कस्टम्स हो गया या जीएसटी से रिलेटेड कुछ हो गया, अगर कहीं से इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो है वो आ रही है एंड इट इज नॉट एक्चुअली सिंकिंग अप here for income tax people, so वो भी जो है उस रीजन से भी जो है मेरे को जो है 148 147 में रीअसेस कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा जैसे अभी Basically, संदीप जी. was telling कि our targeted audience is MSMEs and small businesses. So मैं ये बताना चाहूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज 133 के ना सेक्शन 133 के बहुत सारे नोटिस इशू किए जाते हैं, जो जैसे सपोज एक कंपनी के लिए 133 आपने किसी से डेटा ले लिया, उस 133 से किसी और कंपनी का नाम भी अगर ट्रिगर हो जाता है तो उस कंपनी का भी ये ओपन कर देते हैं और फिर से उसे रीअसेस करते हैं कि अगर किसी वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन है किसी कंपनी के साथ और दूसरी कंपनी ने उसे रिपोर्ट कर दिया बट इस कंपनी ने नहीं किया, तो वो भी एक रीजन बन जाता है कभी कभी ओपन करने का। यस Yes. जय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जय कपूर जी सर सो इनफैक्ट जो अभी प्रमोद सर ने कहा, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड देयर कि इनफैक्ट अगर आप कोई 15 CACB भी फाइल करते हैं एंड उसमें कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी खुद की इनकम या कोई फॉरेन एंटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन हम फर्निश कर रहे हैं एज एन इंडियन एंटिटी, ये फॉरेन कंपनी के लिए भी एक तरीके से एक क्वेश्चन खड़ा कर सकता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो क्वेश्चन बेसिकली वो फॉरेन कंपनी को वो पूछ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन कंपनी कोई शेयर्स परचेज करती है फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, सिर्फ परचेज करे हैं शेयर्स एंड उसने कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है बिकॉज उसकी कोई इनकम नहीं थी पर से, बट क्योंकि उसने एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एंटर करी है तो कभी कभी ये भी एक रीजन बन जाता है टू इशू 148A(b) और 148AA टू गैदर इन्फॉर्मेशन सेइंग दैट कि आपने रिटर्न तो नहीं फाइल करी बट एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में एंटर किया है। तो सारी ही इंफॉर्मेशन को गैदर करके गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि कोई भी लूप होल ना रह जाए और कोई भी ऐसा सोर्स ना रह जाए जो कि अनटैक्स्ड हो, चाहे वो इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू हो, चाहे वो 133(6) दूसरे एसएससीज को इशू करके हो, एंड इनफैक्ट ई वेरिफिकेशन स्कीम जो कि लाई गई है 135A के अंडर, दैट आल्सो इज बेसिकली टू इनिशिएट द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग। एंड अगर ई वेरिफिकेशन स्कीम के थ्रू आपका रीअसेसमेंट स्टार्ट हो रहा है देन सेक्शन ने इस तरीके की प्रोविजन प्रोवाइड करे हैं डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट को बेसिकली 148A का जो प्रोसीजर है कि शो कॉज नोटिस इशू करना है एंड एक्सेट्रा वो फॉलो करने की शायद जरूरत भी ना पड़े। तो डिपार्टमेंट इज बेसिकली गिविंग मोर पावर्स टू द ऑफिसर्स टू इनिशिएट द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स, ताकि वो बिना कोई रोक टोक के बिना एक असेसी की इनकम जो कि अनटैक्स रह गई है उसको वो टैक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। yes. So you mean to say, Jaya ji, ki it is a case of faceless assessments that we are heading for? Brijesh sir, I want to add here sir, जो आपका 148A वाला पार्ट होता है that is not faceless. That is not faceless. मैं जया जी ने जो कहा कि 148A से हटकर हम जा रहे हैं, मैं उस बात पे टिप्पणी कर रहा हूं सर।
जी जी 148A तो इट इज बेसिकली प्योरली शो कॉज नोटिस की हर चीज जो है राइट आपसे पूछ के की जाएगी कि ये काम क्यों ना किया जाए। बट जया का राइट एक कमेंट था कि वी आर हेडिंग अहेड फ्रॉम 148A वेयर वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व assessee also, so that means that is it going to be a case of Yes. faceless assessment? सर अभी ओके सॉरी सर आप कुछ बोल रहे हैं? I want to say here, Vijay sir, that there are some provisions under which 148A is not mandatory. For example, in case of search, अगर आपके सर्च होती है तो उस केस के अंदर आपको बिना 148A दिए डायरेक्ट आपकी 148 147 में आपकी असेसमेंट की जाती है। अगर आपके डीम सर्च होती है उस केस में भी बिना 148A दिए बिना आपकी डायरेक्टली 148 को ओपन करके 147 में आपका असेसमेंट की जाती है आपकी। तो ये भी एक वे है जिसमें 148 को स्किप किया जाता है। साथ में हाँ ये सौरभ जी, इसी में ही जो सर्च वाले केसेस जहां पर 148A एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर ये भी है कि किसी के यहाँ पर सर्च हुई है और वहां पर किसी दूसरे पर्सन के कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन मिल गई हैं, तो वो दूसरे पर्सन को भी विदाउट 148A के नोटिस के ही डायरेक्टली 148 का नोटिस भेज करके डायरेक्टली असेसमेंट के प्रोसेस, यानी कि रेड मेरे यहाँ पर नहीं हुई है, किसी और के यहाँ हुई, बट वहां पर कोई डॉक्यूमेंट मिल गया। इवन अभी हमारे पास में 4-5 केसेस आए जिनके ऊपर फाइट कर रही, कहीं पे रेड हुई है और बड़े रिनाउंड के नाम पर ही नोटिस आए हुए हैं कि भाई आपने सामान वाहन खरीदे हुए हैं एंड डायरेक्टली 148 के नोटिस। तो वो एक्सेप्शंस हैं अंडर सेक्शन 148A। ये चीज पहले 153C के अंदर कवर होती थी, डीम सर्च वो या डीम रेड, इसको वर्ड यस। तो सर मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहूंगा, बेसिकली वो 153C वाला जो है वो अब जो है वो रिजीम वापस आने की ही बात हो रही है ऑन जो फाइनेंस एक्ट 21 में जो उन्होंने बोला था कि मींस वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट सर्च एंड सीजर थिंग्स, उससे हटकर हम इस तरफ आ रहे हैं। द रियलिटी इज कि वैसा नहीं है, बैक टू स्क्वायर वन ही है, क्या कह सकते हैं हम? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 2021 फाइनेंस एक्ट में ओनली प्रोविजंस ही चेंज हुए, सेक्शंस सर ओनली सेक्शंस ही चेंज हुए। सर्च सीजर के जो प्रोविजंस थे वो बिल्कुल असेसी पर्सपेक्टिव में बिल्कुल वही है। पहले वो सेक्शन 153A to C होता था प्रोविजन, थोड़े से सेक्शंस चेंज हो गए। A to C होता था, वो अब 147 में ही कंसोलिडेट कर दिए गए हैं। 148 पर हां असेसमेंट वहां पे 153A से 153C की जगह 147 में आ गया है। रेड प्रोसीजर सारी 132 में ही है, वो सारा का सारा प्रोसीजर सब कुछ वो एवरीथिंग इज सेम। सौरभ जी अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली तो एक हमें हल्का सा तीन अपॉर्चुनिटी मिलती है सर यहाँ पे। एक तो हमें पहले इनसाइट पोर्टल पे इंफॉर्मेशन आती है, वहां पे उसका रिप्लाई करना होता है सर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। दूसरा 133(6) का नोटिस हमें भेजा जाता है सम टाइम, हमें उसका रिप्लाई करना होता है। उसके बाद 148A आता है, देन 147 इनिशिएट होता है बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ कि ये यस सर, बट 133(6) का जो नोटिस है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि जो इनसाइट पोर्टल पर जो आते हैं नोटिस आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं, बहुत बार हम वहां पर प्रॉपर अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट 133(6) का नोटिस वो डिटेल्ड नोटिस और वहां पर हम अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विद एविडेंस हम सारे के सारे वहां पर लगा सकते। तो अगर 133(6) का नोटिस आया डिपार्टमेंट से, तो मेरा अपना मानना भी है और एक ये अच्छी प्रैक्टिस भी है कि हम वहां पे अपना डिटेल्ड सबमिशन दें। कहीं भी जैसे मान लीजिए 133(6) का नोटिस है, 148A का नोटिस है, हम ये माने कि ये हमारा मेन असेसमेंट चल रहा है, ये सिर्फ सो कॉज नोटिस नहीं है। जो भी हमारे पास है एविडेंस है, जो हमें कहना है, जो हमारे पास लीगल सपोर्टिंग्स हैं, कोई केस लॉज हैं, हमें डिटेल्ड वहां पर बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ उसका रिप्लाई बना करके फाइल करना है, ताकि केस वहीं के वहीं खत्म हो जाए। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोद जी मैं आपका हर सवाल का जवाब ऐसे देना है कि अगला सवाल जो है वो ना ही अराइज हो, ना ही अपने आप से कुछ ना सोच ले, अपने आप से कुछ प्रिजम्पशंस ना रखें। बिल्कुल, हम अपने माइंड में कोई प्रिजम्पशन लेकर के ना चलें कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा हम तो सब कुछ जो भी उस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब कुछ हम ऑफिसर को बताएं कि भाई ये चीजें हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है शायद वो ठीक नहीं है, या आप जो सोच रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है। एक्चुअल ट्रू पोजीशन ये है, दीज आर द सपोर्टिंग एविडेंस, दीज आर द केस लॉज, एंड इस केस में मेरा केस नहीं बनता है। राइट जी, राइट, गॉट इट,
वेरी क्लियर। प्रमोद जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। जैसे हमें 133(6) का पहले एक नोटिस आया, हमने उसका डिटेल रिप्लाई सबमिट कर दिया, ऑफिसर ने बिना उसको पढ़े बिना समझे 148A इश्यू कर दिया। हमने 148A का भी पूरा डिटेल रिप्लाई सबमिट करा, उसके बाद भी उसने बिना पढ़े समझे उसने 147 इनिशिएट कर दिया। तो ये कितनी इसकी लीगल बैकिंग है और कितनी इसकी वैलिडिटी है कि 133(6) के रिप्लाई को भी उसने प्रॉपर्ली देखो 133(6) का तो कोई उसको ऑर्डर पास करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नोटिस भेजा, हमने रिप्लाई सबमिट कर दिया, उसको पसंद नहीं आया, उसे 148A कर दिया। लेकिन 148A में एक वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है, इसके अंदर भी हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर चुके हैं, बट उसको भी उन इंफॉर्मेशन को भी दरकिनार करते हुए वो हमारा 147 इनिशिएट कर देता है। तो क्या इसके पीछे लॉ क्या है और कितना ये चीज वैलिड है और इसको हम किस लेवल तक चैलेंज कर सकते हैं? यस, ये संगम जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में, बिकॉज यही होता है एक्चुअली। एसएससी जैसे सौरभ सर बता रहे हैं ना कि आपको बहुत अच्छा रिप्लाई फाइल करना है, तो हर एसएससी अपने हिसाब से अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हायर करके या खुद से भी बेस्ट रिप्लाई फाइल करता है अपने बिजनेस के इंटरेस्ट में। बट फिर भी डिपार्टमेंट असेसमेंट नोटिस जारी करते हैं और उसका रीअसेसमेंट भी करते हैं। तो जैसा आप बता रहे हो 133(6) की जो नोटिस आती है उसका रिप्लाई आप खुद तो देते ही हो, उसके अलावा ये क्रॉस चेकिंग होती है डेटा। 133 के नोटिस आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर्स, वेंडर्स को भी भेजे जाते हैं, तो वहां से भी उस डेटा को वो क्रॉस चेक करते हैं, जो बहुत ही कॉमन हो रहा है एज अ बिजनेस। हमारे पास भी हमारे बिजनेस के बहुत सारे आते हैं नोटिस, तो लाइकवाइज ये क्रॉस चेकिंग करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसमें भी सपोजिंग आपका डेटा पूरा डेटा आपका सिंक में है, कोई वेरिएशन उसमें नहीं मिलता डिपार्टमेंट को, और आपने भी 148 का रिप्लाई प्रॉपर्ली फाइल कर दिया है, फिर भी इनिशिएट होता है। तो इसकी लीगल बैकिंग में यही बोलूंगा मैं, जैसे रिसेंटली लास्ट 2 to 3 years में हमने बहुत विटनेस किया है कि बहुत कंपनीज, मोर देन 1000 कंपनीज को हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दिया है इसमें। बहुत जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट से, वहां से लोगों को रिलीफ मिला है, बाद में इसे एक्ट में भी चेंज किया गया। तो लीगल बैकिंग की बात करें तो ओनली रिट पिटीशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उसको चैलेंज करने का। आप यू हैव द ओनली ऑप्शन फॉर गोइंग इनटू रिट, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास लॉ का बैकअप सिर्फ उतना ही है। अगर ओपन कर दिया तो आपको सब चीजें फिर से कंप्लाई करनी ही करनी है और अपना असेसमेंट कराना है। और रिट के बट अगर आपने प्रॉपर्ली किया हुआ है तो हाई कोर्ट्स में रिलीफ मिलता है, ये मैं बोलूंगा, क्योंकि बहुत लास्ट 3 years में तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, सो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। सर इसमें एक पॉइंट था मेरा, हाई कोर्ट हम तभी जा सकते हैं इफ इट रिलेट्स टू अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इसमें क्या हम क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट जाते हैं? सर ये मैटर जो है ना, ये रिट फाइल होते हैं इन नेचर ऑफ मैंडामस और इन नेचर ऑफ सैटिररी, उस टाइप के नेचर का होता है जहां पे मिसयूज ऑफ पावर वाले सेक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें मिसयूज ऑफ पावर के सेक्शंस लगाकर हम जो है हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। यस, वो वाले वही वाले प्रिंसिपल लगाए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो रिट हम लोग फाइल करते हैं वो बेसिकली उसके पीछे 2 कॉज ऑफ एक्शन होते हैं। पहला तो डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड सेकंड अगर कहीं पर जुरिस्डिक्शनल डिफॉल्ट है। तो बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्लियर कट डिनायल होता है। आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने सारा डिटेल्ड रिप्लाई आपको दिया हुआ है, आपने उस रिप्लाई को एक तरफ कर दिया और अपना ऑर्डर पास कर दिया। मेरे रिप्लाई को आपने पढ़ा भी नहीं, आपने अपने प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ में 147 इश्यू कर दिया। तो ये क्लियर कट डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके लिए हाई कोर्ट एकदम इमीडिएट हमें रेमेडी, जो स्पेशल रेमेडी है उसको प्रोवाइड कर। तो सर एक पॉइंट और था, हम क्या जो है ये जॉइंट कमिश्नर अपील्स के बाद ही सीधा हाई कोर्ट चले जाते हैं या थ्रू एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल होने के बाद जाते हैं हम हाई कोर्ट? जो है पहले दोनों अलग-अलग रूट्स हैं सर, दोनों के लिए अलग-अलग रूट्स हैं। अगर आपको रिट फाइल करना है या उनके ऑर्डर को चैलेंज करना है तो फिर आपको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। आपको एपिलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा जॉइंट कमिश्नर में तो आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। अगर आपके लिए कोई ऑर्डर पास कर दिया उसमें, है ना। यहाँ पे जैसे अभी संगम जी का क्वेश्चन था ना, वो 147 में ओपन करने की बात कर रहे थे। असेसमेंट ओपन होने के बाद फिर से जो ऑर्डर आता है, कुछ एडिशंस वो वेरिएशंस प्रपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग फिर से फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल अपील में जा सकते हैं। बट यहाँ जो केस है, यहाँ पे हमें रिट के थ्रू ही रिलीफ सॉर्ट करना पड़ेगा लॉ में। ओके बेसिकली जो 148A(D) का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में कोई भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी अपील पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें रिट का रूट अपनाना पड़ता है। जो 147 के बाद में, असेसमेंट के बाद में जो ऑर्डर आता है 147 का,
वहां पर फिर हमारे पास में प्रॉपर अपील का मैकेनिज्म है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पूरा चैनल बना हुआ है एक पूरा कि आप चैनल, पहले पूरा चैनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, इफ देयर इज अ केस रिलेटेड टू लॉ, इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कीजिए। बट Yes, एक्चुअली sir. सर सेक्शन 246 पे ना लिखा है कि कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है आपके, तो उसमें 148 ए का बी जो ऑर्डर है वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है आपका। इस चक्कर में हम सीआईटी अपील उसके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते, हमें हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी होती है। हमें हाई कोर्ट में ही रिट फाइल करनी होती है। इट इज 148 ए डी यू आर टॉकिंग, ए बी यू आर टॉकिंग? यस सर ए बी के Section लिए भी आप नोटिस है वो 148A तो ABA is a yes for so cause. ओके, ए बी के लिए भी आप इनफैक्ट रिट तो फाइल कर ही सकते हैं, ए ऑर्डर बी के के लिए आप अगेंस्ट भी रिट फाइल कर सकते हैं, कर सकते हैं, डी के लिए भी कर सकते हैं, ऑर्डर के ए अगेंस्ट बी के लिए भी कर सकते हैं और डी के लिए भी कर सकते हैं। जी। Yes, yes. राइट सर सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर, बिकॉज आप काफी असेसमेंट करते हैं, केस करवाते हैं सर। आजकल से एक फैशन बन गया है सर, जो 148 के ऑर्डर पास होते हैं और 147 के जो ऑर्डर पास होते हैं, साथ में जो 143 के ऑर्डर पास होते हैं, जब उनका ऑर्डर हम पढ़ते हैं तो इनिशियली केस कैसे ओपन हुआ वो बात लिखी होती है, उसके बाद जो जो नोटिस एओ ने दिए होते हैं वो सब पेश करे होते हैं, उसके हमने जो रिप्लाई दिया वो सब पेश करा होता है, बट नीचे 2 लाइन लिखी होती है, सबमिशन मेड बाय एसएससी इज नॉट टेनेबल, हेंस वी आर मेकिंग द एडिशन, और वो कंप्यूटेशन शीट ऐड कर देता है नीचे। तो ये मतलब कितनी वैलिडिटी, क्या हम इस ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर कहेंगे, और मतलब क्या ये ऑर्डर को मतलब इट इज मतलब किस तरह के ऑर्डर बन रहे हैं आजकल ये, सौरभ जी आप बताइए। सर देखिए, जब भी कोई असेसिंग अथॉरिटी ऑर्डर बनाएगी तो ये ऑर्डर बनाने का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया गया। तो क्या पूछा गया उसने अपने ऑर्डर्स की कॉपी वहां पे पेस्ट कर दी, उसकी जो हमने रिप्लाई फाइल किए हुए उसकी कॉपी पेस्ट कर दी, एंड इस सारी प्रोसेस के बाद में सबसे लास्ट में असेसिंग ऑफिसर को अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट देना है कि वो क्या कहना चाहता है। बट अगर वो सिंपल 2 लाइन के अंदर अपना जजमेंट दे करके और ऑर्डर पास कर रहा है कि इन व्यू ऑफ द अबव द कंटेंशन ऑफ द एसएससी इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ऐसा कहने के बाद में उसने एडिशन कर दी, देन इट इज क्लियर कट डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट कैन नॉट बी सेड एज ए स्पीकिंग ऑर्डर, क्योंकि उसको रीजनिंग देनी है। स्पीकिंग ऑर्डर लॉ की एक बेसिक प्रीमाइस है, उसको रीजनिंग देनी है कि मैंने ये पूछा, उन्होंने ये बताया और मैं किस वजह से सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर उसने वो डिटेल नहीं दी है, then it is clear cut denial of principle of natural justice. This cannot be said as a speaking order. Yes, yes. But practically संगम जी आप जैसा कह रहे हो, most of the orders वैसे ही होते हैं, उन्हें लगता है कि all the submissions made by assessees were taken into consideration but not accepted. So कोई reasoning नहीं देते वो, कुछ नहीं देते, but फिर भी वो चल रहा है। सौरभ सर प्रैक्टिकली क्या हुआ, एक केस में मुझे 143 का 97 पेज का ऑर्डर मिला सर। उसने क्या कर रखा है उसके अंदर, जो उसने नोटिस भेजे वो पेश कर दिए, जो मैंने रिप्लाई भेजे वो पेश कर दी, जो मेरी अटैचमेंट थी वो पेश कर दी उसने, और पूरा कंक्लूड 2 लाइनों में कर दिया, द सबमिशन मेड बाय द एसएससी इज नॉट टेनेबल, हेंस वी आर मेकिंग दिस एडिशंस बेसिकली सर। सो आजकल जो बन रही है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो ऑर्डर बना है ना सर, ये ऐसा नहीं कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने अपनी इच्छा से कर दी, उसके ऊपर 3 अथॉरिटी है सर। एडिशनल ऑडिट जॉइंट कमिश्नर है जो उसको रिव्यू कर रहा है सर, एक वेरिफिकेशन यूनिट है, एक रिव्यू यूनिट है, और उसके ऊपर फिर एनईएस है, नेशनल स्पेशल असेसमेंट सेंटर। ये 4 लेवल पे वो रिव्यू के ऑर्डर आया है सर। अगर और सिर्फ ऑर्डर टाइम से आ गया, ऐसा नहीं कि वो 30 मार्च को ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर कहीं ना कहीं 15 मार्च को आ गया है, मतलब सबको प्रॉपर। आई अंडरस्टैंड सर, अगर कोई ऑर्डर 30 मार्च को पास हो रहा है अगर, तो हो सकता है सर उसमें रिव्यू में निकल गया हो सर वो, बट लेकिन जो ऑर्डर 15 मार्च को पास हो रहा है तो 4 रिव्यू के प्रोसेस से होके आया है, तो किसी ने भी सर उसको मतलब रेक्टिफाई करने की वो नहीं समझी कि भैया इस ऑर्डर में तो स्पीकिंग ऑर्डर ही नहीं है, इसको तो अगर पहले अपील में जाएगा वैसे पूरा ऑर्डर होगा, मतलब दैट्स क्लियरली शो कि देयर इज नो क्लियर ऑफिसर। हम इस केस में कहते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस में हम कहते हैं देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द टैक्सेशन सिस्टम, इवन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन एनी गवर्नमेंट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आज एक एसएससी को 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए की डिमांड, असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, डिमांड निकाल दी, वो डिमांड ट्रिब्यूनल तक जाते जाते ही भी सस्टेन नहीं कर पाती, वहीं लड़खड़ा जाती है और हाई कोर्ट जाके उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। भाई आप क्या कर रहे थे जो कि ये ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तक भी डिमांड नहीं पहुंची आपकी। तो चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है,
वो गलत ऑर्डर पास कर दे तो सही ऑर्डर पास कर दे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए वो जो हो रहा है वो चल रहा है। अल्टीमेटली सफर एसएससी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद सर, मैं अपना अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जब ये हमारे असेसमेंट के ऑर्डर आते हैं तो आप देखा है कि आजकल फैशन बन गया कि 270A की पेनल्टी हर केस में इनिशिएट की जाती है, जबकि हम जब 270A को जब हम क्लियरली पढ़ते हैं तो उसमें दो सेक्शन है, 270A 7 और 8। 7 के अंदर 50% पेनल्टी है और 8 के अंदर 200% पेनल्टी है। मैंने आज तक एक सिंगल ऑर्डर नहीं देखा जहाँ पे 270A 7 में पेनल्टी लगाई गई हो। हर केस में 8 में पेनल्टी लगाई जाती है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स बेसिकली। तो ये Yes, कितना जस्टिफाइड है कि हर केस के अंदर आप उसको 270A 8 की पेनल्टी इनिशिएट कर रहे हैं बेसिकली? प्रमोद जी Yes, की yes. क्वेश्चन। यस यस, देखिए पेनल्टी अभी हर ऑर्डर के साथ ना एक 156 की डिमांड नोटिस भी निकालते हैं और 271 की पेनल्टी भी लगा ही देते हैं। वो बिल्कुल फेसलेस में साथ साथ ही प्रोसेस होता है। बट मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग के जो सेक्शंस थे ना, सो पहले जो मैनुअल रिजीम था वहां पे आप असेसिंग ऑफिसर को थोड़े रिप्लाई सबमिट करते थे, या आप जब रीजनिंग बताते थे कि हम लोग अपील में जा रहे हैं, सो मिस रिपोर्टिंग वाले को वो मैनेज कर लेते थे। नहीं प्रमोद जी, अभी भी ऐसा है, जब आपका असेसमेंट ऑर्डर आएगा ना, अभी जो पेनल्टी इनिशिएट की जाएगी वो पेनल्टी उसकी असेसमेंट अलग से चलेगी सर, फेसलेस के अंदर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल अलग से ही चलती है। मेरा क्वेश्चन है इनिशिएशन से लेके कि वो 7 के अंदर इनिशिएट ना करके हर केस में 8 में इनिशिएशन करते हैं, वो कितना राइट है? देखिए आई मीन टू से दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन 7 और 8 सर? कैन यू अंडरस्टैंड सर? क्योंकि 7 में 50% पेनल्टी है, 8 में आपकी 200% पेनल्टी है, और मैक्सिमम केस में 8 की पेनल्टी इंपोज की जाती है। रीड विद सेक्शन 278A9। राइट राइट। देखिए हर केस में ना अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी करते हैं। मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या होता है ना, जैसे अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट किया है कंप्लीट, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू चेक ऑल द डिटेल्स, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस भी है, और उसे भी लगता है कि अगर हम ओनली अंडर रिपोर्टिंग वाला ही लगाएं, क्योंकि इनकम यहाँ पे हम एडिशंस प्रपोज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि मिस रिपोर्टिंग के साथ और सारी चीजें भी ट्रिगर हो जाती है। 200% पेनल्टी लगाने के लिए ना बाकी चीजों को भी और ज्यादा ट्रिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है उनके लिए भी थोड़ा सेफ है, और ये प्रैक्टिस में भी चल रहा है, तो ये वाली पेनल्टी लगा के वो आगे बढ़ जाते हैं। बट ये पेनल्टी इनिशिएट करते हैं, बट जहां भी एसएससी अपील में जा रहा है, सो वहां पे वो टू बी केप्ट ऑन होल्ड करके रोक देते हैं। बट कुछ कुछ एसएससीज में वो लगाते भी, इनिशिएट भी कर देते हैं पेनल्टी, तो साथ साथ सबमिशंस वगैरह उनका चलता रहता है। जय, आप कुछ कहना चाहेंगे इस वाले पॉइंट पे? जय, यस जी सर। सर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग को हम डिफरेंशिएट इस बेसिस पे कर सकते हैं। लाइक मिस रिपोर्टिंग में मेंस रिया है, मतलब एक एक आपकी इंटेंशन है टैक्स इवेड करने की। अंडर रिपोर्टिंग में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर एक असेसी ने अंडर थॉटफुल एक कॉशियस कॉल ली थी, अंडर हिज अजम्पशन कि ये ठीक है, एज पर लॉ है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी टू इवेड टैक्सेस, टैक्स की चोरी करना उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो प्रोबेबली वो उसको अंडर रिपोर्टिंग में डाल देते हैं, जो कि होता बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट को, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को मिस रिपोर्टिंग से ज्यादा बेनिफिट है। 200% पेनल्टी वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दी एसएससी, इसलिए वो दोनों चीजें, मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, इसलिए वो 200% पे चले जाते हैं। जबकि कभी कभी इट इज ओनली द केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, या एक सेक्शन जो असेसिंग ऑफिसर उसको किस तरीके से रीड करता है, या जो इन्फॉर्मेशन है असेसी ने किस तरीके से उसको फर्निश करी है, असेसिंग ऑफिसर उसको किसी और ढंग से समझकर उसको मिस रिपोर्टिंग की कैटेगरी में डाल देता है, जो कि गलत है। एंड हमें वहां पे ये प्रूव कर देना चाहिए, प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए दैट there was no culpable intention behind the action. वो एक genuine under bona fide belief assassin ने एक एक्शन किया था, सपोज एक अलाउंस ली थी, कोई डिडक्शन क्लेम करी थी, उसका एक जेन्युइन बिलीफ था कि ये अलाउबल है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं टू एवेड टैक्सेस। हमें वहां पे वो प्रूव करने की जरूरत है, एंड जनरली वो बाय डिफॉल्ट ही उसको अंडर मिस रिपोर्टिंग में कैटेगरी में डाल देते हैं, ये हम देख रहे हैं, तो उसको हम लोग को इस तरीके से जस्टिफाई करने की जरूरत है। ओके सौरभ जी, आप अपना रिप्लाई करने से पहले बताएंगे कि आपने कोई 270A 7 का देखा है सर आपने इनिशिएशन, या हमेशा आपने भी 8 के ही देखे हैं सर? नहीं खैर मैंने देखे हैं, 7 वाले भी देखे, 50% वाले भी आए हैं, बट वो नो डाउट वो बहुत कम होते हैं, एंड ये 200% वाले ज्यादा होते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा, 270A बड़ी वेल डिफाइंड सेक्शन है। अंडर रिपोर्टिंग को भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है भी किस किस सर्कमस्टांस में अंडर रिपोर्टिंग हम मानेंगे। अंडर रिपोर्टिंग तो इन एवरी केस जहां भी एडिशन हुई
दैट इज ए केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, उसमें कोई टेंशन का मैटर ही नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी क्लियर, लॉ इज वेरी वेरी क्लियर। बट उन्होंने सेक्शन 270 सबसेक्शन 9 के अंदर 6 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दी हुई है कि अगर आपका केस स्पेसिफिकली यहाँ पे फॉल कर गया तो हम आपके केस को उस अंडर रिपोर्टिंग को इन कंसिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग मान लेंगे, 200% में फॉल कर जाएगा। उन 6 सर्कमस्टांसेस में से 5 तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्लियर है, तो वो केस अगर वहां पे फॉल कर गया तो एवरीथिंग को तो क्लियर हो ही गया। बट जो उसके अंदर सबसे पहली जो आती है दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज पंडेरा ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ लिटिगेशन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, एक्साइज लॉ, सर्विस टैक्स लॉ के अंदर, ये तो आज तक भी इसके केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट मिस रिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। क्या होता है जब असेसिंग ऑफिसर ने मेरी कोई इनकम के अंदर एडिशन की तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो नई चीज लेकर के आया कि आपने ये चीज गलत की हुई थी, वो उसके हिसाब से मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की उसके हिसाब से डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, एंड इसलिए वो 200% के अंदर वहां पर लेकर गए। तो मिस रिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इतना वाइड वर्ड है अपने आप में कि उसके अंदर वो सभी कुछ कवर कर जाते हैं, इसलिए ये 270 जो 9 की जो सर्कमस्टांसेस के अंदर वो 200% की पेनल्टी लगाते हैं। ओके, ग्रोवर सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसमें? ग्रोवर सर? I think I agree with whatsoever the panel is saying. That's a perfect thing. ये मैं past में देखता ही आ रहा हूँ, ये सब इसी तरह से ही होता है for good 20-25 years in every kind of taxation. ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली शो कोज नोटिस को लेके। बेसिकली हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग हमें 142 का नोटिस आता है, क्वेश्चनर आता है, हम उसका जवाब देते हैं, फिर नियर टू असेसमेंट डेट एक शो कोज नोटिस आता है, उसमें से वो 4 पॉइंट पूछे गए हैं, हमने उसका जवाब दिया। देयर इज वेरी हाई चांसेस कि जब जो शो कोज नोटिस आया उसी की पॉइंट्स पे एडिशन होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पॉइंट शो कोज नोटिस में कवर ही नहीं है, आज से पहले 142 के क्वेश्चन में कवर नहीं है, बट असेसमेंट ऑर्डर के अंदर वो चीज की भी एडिशन की जाती है। तो ये कितना वैलिड है कि कोई उस तरह की एडिशन जो शो कोज नोटिस में मेंशन ही नहीं है, जिसपे मुझे अपनी बात कहने का राइट ही दिया गया, उस वाले पॉइंट पे मेरी अगर एडिशन हो रही है तो ये कितना राइट है? या फिर 142 नोटिस में एक सिंपल पैराग्राफ था, प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर्स, मैंने उसकी डिटेल दे दी, शो कोज में कोई जिक्र नहीं किया गया। जब असेसमेंट हुई तो उसने मेरे 5 सन्ड्री क्रेडिटर ऐड कर दिए जी, आपके उनसे कंफर्मेशन नहीं हो पा रही जी। तो इस केस के अंदर उसका सस्पेंड ऑर्डर कितना वैलिड है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बिना शो कोज नोटिस प्रोवाइड किए गए एडिशन करना? प्रमोद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। यस संगम जी, आपका ध्यान पूरे डिपार्टमेंट की तरफ ही है। सो डिपार्टमेंट वाले, जैसा अभी सौरभ सर ने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि उनके ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, मतलब उनके कोई एम्बार्गो है नहीं कि उनके एक्ट का कुछ नहीं होता, वो जो भी करे वो चल जाता है, फिर वो मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहता है, राइट। बट इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा होता भी है कि बताओ, अगर आपने सो कॉज किए बगैर और हियरिंग अपॉर्चुनिटी दिए बगैर अगर कोई एडिशन आप कर रहे हो तो इट्स टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। सो उसका रिलीफ लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल तक ही मिलेगा अगर उसने कर दिया है तो। ये लीगली तो बिल्कुल टेनेबल नहीं है, ये पोजीशन बिल्कुल टेनेबल नहीं है, और इससे रिलेटेड हाई कोर्ट में बहुत इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। यस ब्रिजेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ मैं क्योंकि यहाँ जो है जो प्रोविजंस हैं उसमें अगर 148 का नोटिस नहीं दिया है और साथ में कुछ जो है असेसिंग ऑफिसर को नजर आता है तो ही कैन एक्चुअली प्रोसीड ऑन दैट विदाउट इशूइंग 148 सर नोटिस। अभी हम ये जितना मैं पढ़ के समझा हूँ विजय जी, अभी हम 148 वाले की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिस ऑफ इट। अभी हम यही बात कर रहे थे ना संगम जी कि शो कॉज नोटिस की बात कर रहे थे कि शो कॉज नोटिस दिया है और शो कॉज नोटिस में जो चीज पूछी गई थी उसके अलावा हट के बाकी चीजों के ऊपर भी जो है कमेंट, टिप्पणी और चार्जेस, पेनल्टीज कुछ भी लगाई गए हैं। सो आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन। करेक्ट मी संगम इफ आई एम हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। यस सर, मेरा पॉइंट ये है सर, जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उसमें ऐसी एडिशन थी जो शो कोज नोटिस में कवर नहीं थी, और उससे पहले 2 ऑप्शन से पूछी नहीं गई, दूसरा पूछी गई तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछी गई, मैंने उसका जवाब दिया और उसके बेस पे उसकी एडिशन कर दी गई बेसिकली। ये सब मेरा क्वेश्चन था।
तो Jay, मैं इसका जो रिलेटेड, मैं एक इसका रिलेटेड प्रोविजन जो है हल्का सा पढ़ के पैनल में पढ़ा बताता हूं आपको. Correct me if I am having a wrong understanding. An assessing officer may also assess or reassess the income in respect of any issues which has escaped assessment, and such issue comes to his or her notice subsequently in the course of proceeding under section 147. This is irrespective of the fact that provisions of section 148A have not been complied with. Means ये एक मेरे को इससे Sir. रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो दिखे हैं. सर वो तो आप पावर की बात कर रहे हैं सर, मतलब मैं यस सर. कुछ बोलूं? हाँ, बिल्कुल ब्रजेश सर, सर, बिल्कुल. यहाँ पर मैं आपको basically- मैं मेरा कॉल जो है वो बेसिकली सर एक नोविस वाला कॉल है, चाहे उम्र का कुछ भी दरकार हो. No, But sir. all my life I am in basically business मैं- and business. नहीं डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ. बेसिकली आपने जो अभी पढ़ा है सेक्शन 147 का प्रोवाइजो है, और संगम जी ने जो बात शुरू की वो सो कॉज नोटिस को लेकर के शुरू की. दो अलग अलग तरीके के सो कॉज नोटिस हैं. एक सो कॉज नोटिस है सेक्शन 148A का सो कॉज नोटिस, जिसके रेफरेंस में आपने बात की है अभी. तो जो आपने कहा कि 147 का प्रोवाइजो है, तो वहां पर जो प्रोवाइजो ये कह रहा है कि हमने 148A के थ्रू एक प्रोसीजर शुरू की. प्रोसीजर शुरू करने के बाद असेसमेंट शुरू किया. असेसमेंट शुरू करने के बाद में हमें कोई नई चीज निकल करके आ गई उसके अंदर, देन फिर अगर मैं उस नई चीज को भी असेस करना चाहता हूं तो फिर मैं 148A के थ्रू नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली असेस कर सकता हूं. एक पॉइंट जो आपने डिस्कस किया. बट संगम जी ने जो सो कॉज नोटिस कहा था, सो कॉज नोटिस बेसिकली क्या, जब असेसमेंट प्रोसीजर चल रही है, चाहे 143 की हो या 147 की हो, असेसमेंट प्रोसीजर चल रही है, एक साल तक लगभग प्रोसीजर चलती रहती है. 142 के नोटिस आते हैं, हम रिप्लाई देते हैं, वो कुछ मांगता है, हम रिप्लाई देते हैं. और ऐसा करने के बाद में फाइनल कंक्लूडिंग स्टेज पर जब हमारा असेसमेंट आ जाता है, देन उसके बाद में वो फाइनली एक फाइनल सो कॉज नोटिस हमें देता है. दैट इज नॉट सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A. वो सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 144B है. वहां की उस सेक्शन की वजह से एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए कि भाई मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग, असेसिंग ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि भाई साहब मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट पे एडिशन बनती है आपकी, इसके लिए आप फाइनली आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, वरना मैं एडिशन कर दूंगा. अपना माइंड उसने आपको बता दिया. तो संगम जी ने वो वाले सो कॉज नोटिस की बात की है. ओके परफेक्ट है. थैंक्स. मैंने इसीलिए कहा था कि करेक्ट माय अंडरस्टैंडिंग जो है, तो थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग इट. सौरभ सर हमारे साथ एक प्रोफेशनल लाइन पे हैं, सीएमए अनुपम सर हैं. इनके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं. अनुपम सर. हेलो अनुपम जी. Good evening, panelists. Good evening to everybody. Hi. I am thankful to Navodaya Chamber of Commerce for allowing me to present my question here. And my question is, in 2018, one of my client has sold her inherited property, and she is now NRI, but didn't file her return. Subsequently, she received all notices, and these were in her registered mail ID as well as the SMS, but she overlooked it. Somehow she couldn't get it, and finally she has got 144(1)(c) draft notice. I mean, that is the order, and that is not notice, that is order. Since she is an NRI, she has to report to the DRP. Now the point is, from the very beginning, the AO has taken it that from reliable source, it has been obtained the information like you have purchased the immovable property, whereas she has sold the property. In all her notices and orders, it was mentioned that you have purchased the immovable property. So in this ground, we have just written and replied to AO recently that hardly 1 week back, that since the total crux of the order or notices issued were in a wrong path, so can we ask them to revise this order? Am I audible? Yes, Jay, you can reply. Sure, sir. सर अभी क्योंकि उनका ड्राफ्ट ऑर्डर पास हो चुका है 144C में, सो चांसेस आर वेरी लेस कि वो उस ऑर्डर को रिवाइज करेंगे. आपने अपनी तरफ से अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, अब आपके पास 1 महीने का टाइम है. या तो आप
DRP के रूट पे चले जाइए, अदरवाइज आप उनके फाइनल ऑर्डर आने की वेट करिए। एंड और अगर आप DRP पे जाते हैं तो चांसेस आर अगेन वेरी लो कि आपके फेवर में कोई आपका डिसीजन आएगा, बिकॉज DRP इज जनरली प्रो रेवेन्यू के ही फेवर में ऑर्डर्स देते हैं, वो डायरेक्शन देते Yeah, हैं, yeah. तो जनरली आपको वहां पे रिलीफ मिलता नहीं है। अगर आपका क्लाइंट ऐसे है जो उसको अगर CIT अपील में जाते हैं, अभी क्योंकि JCIT भी आ गया है, तो चांसेस आर कि आपका अपील में केस थोड़ा जल्दी से टेकअप हो जाए। एंड आप अगर इसमें 1 महीने तक की को आपका टाइम रहता है टू आपका जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई रिप्लाई वगैरह फाइल करना है, या आप अगर DRP पे जाना चाहते हो, ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं, तो 1 महीने के बाद आपका फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। 143C रेड विद 144C1, एंड उसके बाद आप One अपील फाइल कर सकते हैं। one उसके month बाद has आप been 1 month will be ended in 6th April, okay, or 5th Okay. April. Already we have sent the reply, and I don't know whether AO will work on it or not. But as you are telling, the DRP is 3 PCIT will be appearing there, and we have to be personally meet him, Right. meet those people. So I don't think that DRP is the right choice right now, because we can Right. go to the CIT appeal also. So we want to Right. dodge this route, DRP route. We do not want to, attend that DRP route. So we have already mentioned in our response that this order is totally baseless, because she has not purchased any immovable property. She has sold her inherited property. So the line is totally wrong, and I don't know whether AO will listen to it or not. But sir, we have to wait. सर आई थिंक आपका जो लाइन ऑफ वो है, तो आई अंडरस्टैंड कि मे बी शायद उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन गलत किया है कि आपने परचेज किया है, बट क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि आपने सेल करी है प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ होगा ऑन दैट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल, इनहेरिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। That I agree that there is no capital gain. There was a loss itself, and we have valuation. We have done the valuation also. We have received the valuation copy also. And as per the circle rate also, there was a 58 lakhs, but she sold the property in 55 lakhs. So there was and the person whom I met in the DRP also, he said that since he is an NRI, so do not show that there is any income in her account. So she didn't file. This is your simple reply, that there was no income accrued in India. That is the reason why she missed the filing the return within the due date. Okay. So section So by 5 that में way you आपको can. बोलता है So was Section there any 5 tax read with deduction? Was Yeah, any there tax was an deduction? addition. Yeah, there was an addition, No, and at the they time have of added selling all the. property. No, at the time of selling property, did buyer deduct any TDS on that? Yeah, but there was a wrong deduction. It should be in a 22.88%, but they, buyer deducted at 1%. So there is another catch. But that's why the DRP person to whom I met, he said that do not open this case, because you go through this way that you didn't, she didn't accrue any income in India during that assessment year. So there was no need to file the income tax return. That's why she didn't file the return within the due date. Okay, this was the case. Let me tell you frankly, the actual tax position would have been the buyer should have been deducted 22.88% tax on capital gain. There's no exemption on that unless buyer applies for 195 certificate or 197 certificate. But it was not the fault of my client who is an NRI. It is the buyer's fault that they deducted at the rate of 1% instead of as an NRI, treating her as an NRI. He could have deducted 22.88%. But the tax would have actually been credited to your client's account only, na? PAN uska उन्हीं का use हुआ होगा ना? Yeah, no, only 1%. That is 55,000. 1% of 55 lakhs. That is the 1% definitely is that small amount, but then it actually opens the Pandora box, na, for so many other things. Yeah, So that has.
there was non-compliance on the part of buyer as well as seller. So if you have tax demand, then only you go to DRP, otherwise you don't go to DRP. And it's a bit critical case, I would say. So take help of a proper tax consultant who deals in expat cases. So that will be helpful. I So shall what be I would like to add here. सेशन के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेशन के बाद. ठीक है सर. Yeah, There are that is experts fine. who deal in this type of Thank cases. you. Yes. Thank you. So, friends, I want to add one more thing there, because earlier we are discussing the notice key, what kind of notice are coming. They are not speaking orders, and they have sometimes they are very high pitch assessment has been made. So, as per the revised instruction of CBDT dated 23rd April 2022, एक इंस्ट्रक्शन है CBDT की जिसमें उन्होंने 3 प्रपोजल बताया कि अगर आपका ऑर्डर इन तीनों में से किसी प्रपोजल में फॉल करता है तो आपके लोकल एरिया में कहते हैं लोकल कमेटी टू डील विद द टैक्स पेयर ग्रीवेंस फॉर हाई पिच असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट बेसिकली. तो हम उस जो हमारी लोकल एरिया कमेटी बनी हुई है उसको हम अप्रोच कर सकते हैं. जैसा मतलब एज पर दैट इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आपने कोई बहुत अनरीजनेबल ऑर्डर पास हो गया है, कोई आपका जो असेसमेंट हुई है वे बियॉन्ड assumptions है आपकी ऐसी कोई. Sometime it happened that in one of my case I handled the CIT appeal. In that case the balance of bank account, the transaction debit credit balance has been plused and made the addition of the assessee. So if this kind of assessment has been made, so we should not just file CIT appeal, we should also file a complaint with this local area committee, so that they should also see what kind of assessment orders are coming and they should take appropriate action. So if we see the instruction, they have provided the reason that once you file that complaint and department feels the complaint is so valid, so they can go to the CIT for the revision. So meanwhile we have to file the CIT appeal, but department has the power to do suo motu revision of that order, which is totally highly illogical order basically. So I think whenever we get any kind of show cause notice in which this kind of high pitch show cause notice has been provided, in that case we should definitely refer that this is highly illogical and we can move there. So this kind of 4-5 lines we should mention about that instruction in our show cause reply. That will definitely help us to aware that assessing officer that we are aware about those kind of provision, and he should not make this kind of baseless assessment and make a baseless demand. Because once he make a baseless demand, later on we need to deposit 20% to get a stay of demand, and then to get a filing appeal and other thing basically. So, but Sangam ji, just that was a good order from CBDT. But later on, no, the good thing happening around is in most of the cases, in all of the cases, they are allowing assessee opportunity, hearing opportunity through video conferencing. So that is a very good initiative. In all cases, mandatorily they are giving hearing opportunity. So in hearing, if personal hearing is happening, so there's no chances of absurd additions are very much reduced, right? So जो पहले हो रहा था ना, कुछ भी उठा के ऐड कर रहे थे, तो हियरिंग के बाद वो चीजें बहुत कम हो जा रही है. और हियरिंग अभी इनको एक स्पेशल लिंक भी होता है असेसमेंट प्रोसेस में, जिसकी रिक्वेस्ट असेसी डाल सकता है, और वो डालने के बाद कंपल्सरी उन्हें देना ही है. तो उसके बाद ना ये बहुत रिड्यूस हो गया. और उसके अलावा एक और वे आउट तो है एसएससी के पास जो 154 का है, जो जाओ के पास भी फाइल कर सकता है और फाओ के पास भी फाइल कर सकता है. सो 154 में भी इस टाइप की केसेस को वो करेक्ट कर देते हैं. उसके अलावा जो कमिटी वगैरह बनाई थी उसमें आई डोंट थिंक बहुत असेसिस भी गए या क्या हुआ, although I'm not aware of that. I never see कि कोई उसने अप्रोच किया, बट लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को अपने रिप्लाई में जरूर यूज करते हैं, जिससे कि हम एओ को अवेयर कर पाए कि हमारा ये भी एक राइट है. अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो वी कैन गो देयर बेसिकली. तो कहीं ना कहीं दैट विल ट्रीट एज अ कंप्लेंट ऑफ असेसिंग ऑफिसर बेसिकली. राइट. क्योंकि वो फेसलेस में है, वो उतना ही काम कर सकता है, उसके ज्यादा उसके पावर नहीं है. क्योंकि जो पेनल्टी वाला मैटर होगा वो सेम एओ के पास नहीं जाएगा, वो किसी और एओ के पास जाएगा बेसिकली. तो अभी थोड़ा पंगा लेना आसान है. 2 साल पहले ऐसे हो रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसके बाद मतलब हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा रिट्स फाइल हो रही थी फेसलेस के अगेंस्ट में भी. बट अब ये काफी इम्प्रूव्ड है और हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलने से ही ना बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो जाती है. ओके सौरभ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सौरभ जी. हम आजकल देखते हैं कि 68 और 69 की एडिशन करना एक फैशन हो गया है सर. किसी भी बात को 68 में और 69 में उसको कवर करने की कोशिश की जाती है, और मैनी टाइम इट सी दैट कि बिना बुक्स और अकाउंट्स को रिजेक्ट किए असेसिंग ऑफिसर मेक ए एडिशन ऑफ 68 69. तो ये कितना वैलिड है कि 68 69 को हर जगह यूज कर पाना और बिना बुक्स और अकाउंट्स को रिजेक्ट किए इस सेक्शन को के बेस पे एडिशन कर पाना. ओवर टू सौरभ जी.
देखिए, जहां तक 68 69 का एडिशन का सवाल है, जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो मेन डिपार्टमेंट की एक मेथोडोलॉजी है वो है सेक्शन 115 बीबीई, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे 78% का टैक्स लगता है। 78% का टैक्स, तो डिपार्टमेंट इज अंडर द इंप्रेशन कि भाई साहब यहाँ पे 115 बीबीई के अंदर टैक्स आ जाएगा तो 78% की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट किए बिना 68 69 की एडिशन हो सकती है नहीं हो सकती है, हो सकती है। जरूरी नहीं है 68 69 के एडिशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया ही जाए, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, क्योंकि 68 69 की जो एडिशन है उनके लिए पैरामीटर्स सेक्शंस में डिफाइन है। मान लीजिए 68 के अंदर जो क्रेडिट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, तो वहां पर एसएससी के ऊपर ऑनर्स है, उसको प्रूव करना है 3 पैरामीटर्स के ऊपर, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्दीनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर एसएससी अपने आप को प्रूव कर देता है, देन उस केस में एडिशन वहां से हट जाएगी, अदरवाइज एडिशन आएगी। तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करना कोई पैरामीटर्स नहीं है। ओके, सर मेरा पॉइंट यहाँ पे था कि जैसे 69 के अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसी आइटम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बियॉन्ड उसको मिली है, उसी की वो एडिशन कर सकता है। जब वो हमारी स्क्रूटनी कर रहा है, कोई हमारा सेल्स का अमाउंट है, कोई हमारा एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, ऐसी तरह की चीजें जब वो हमारा 69 में एडिशन करता है बेसिकली, तो समाउ मेरा पॉइंट कहने का था कि जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपना एक्सेप्ट कर रखा है, तो मेरी कोई भी बोगस परचेज है या मेरी कोई बोगस सेल है, अब अगर जिसको आप बोगस कह रहे हैं, तो अगर आपने मेरे बुक्स अकाउंट को रिजेक्ट नहीं किया, तो मेरी वो बोगस परचेज की 69 में कैसे एडिशन हो सकती है? नहीं, बोगस परचेज तो ऑलरेडी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है ना। हाँ जी, यस सर, यस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है बोगस परचेज, तो मतलब जिसको वो सो कॉल्ड बोगस परचेज कह रहा है, तो वो तो ऑलरेडी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही वहां पर। वो तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई ये बोगस परचेज है, अदरवाइज हमारे हिसाब से तो वो बोगस परचेज है ही नहीं, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो क्या सर उस बोगस परचेज की 69 सी में एडिशन कर सकता है? डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, वो तो फिर जाकर के अपील में हम फिर उसको हटा, तो वहां पर जब हम अपनी प्ली लेते हैं कि भाई साहब तो एडिशन ही वैलिडिंग है, पर डिपार्टमेंट की जो फ्रॉम द डे वन जो एक मेथोडोलॉजी है वो सिंपल है कि भाई साहब 78% की एडिशन करनी है, 115 बीबी का टैक्स लेना है, तो वो और प्लस में उसके ऊपर इंटरेस्ट बन जाता है। तो टेक्निकली जितने रुपए का, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की परचेजेज है अगर सपोज, तो 5 करोड़ से ऊपर का टैक्स बन जाना है आज की डेट में उसके पास। आजकल सौरभ सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, दोनों चीजें ना पैरेलल चल रही है सर। अगर देखो आपका 68 में उसने एडिशन करी, उस केस में मैंडेटरी 10% की पेनल्टी लगेगी सर आपके ऊपर। यहाँ पे 278 के अंदर 200% की पेनल्टी लगेगी। तो दोनों केस के अंदर डिपार्टमेंट ना 100% जितनी आपकी इनकम है ना उतनी आपकी डिमांड में लाता है सर, टैक्स प्लस पेनल्टी मिला के। अगर उसने एज ए बिजनेस इनकम ऐड करी सर, उसने 30% टैक्स लगाया प्लस इंटरेस्ट लगाया, बाकी रिमेनिंग पे 200% की पेनल्टी लगा दी, तो 90 प्लस 10% मोटा मोटा इंटरेस्ट मानता हूं अगर, तो 100% आपका इनकम के बराबर टैक्स हो गया नॉर्मल प्रोविजन के अंदर भी। और वहां पे भी उसने 115 बीबीई के अंदर मोर लेस 110% के आसपास ही आपसे टैक्स रिकवर कर लिया इंक्लूडिंग पेनल्टी। बहुत सारे ऑर्डर्स तो इस तरीके के आ रहे हैं जहां पे 68 की एडिशन है, 270 ए की भी पेनल्टी इनिशिएट कर रखी है, 271 डबल एसी की भी पेनल्टी इनिशिएट कर रखी है एक ही ऑर्डर में, ऑल इज पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ठीक है, वही वाली बात है, अकाउंटेबिलिटी ना होना सबसे बड़ा उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र है कि यार जो हम कर लेंगे, हमारे को पूछने वाला तो है नहीं। अल्टीमेटली सफर एसएससी ने करना है। सो किसी और को कुछ पॉइंट ऐड करना है? मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं बेसिकली। सो फ्रेंड थोड़ा सा हम बात करते हैं अपील को लेके बेसिकली। अभी हमने असेसमेंट की बात की, पेनल्टी को भी डिस्कस किया हमने, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपील को लेके कि जब एक असेसमेंट ऑर्डर आता है तो हमारे पास दो रेमेडी होती है, वी कैन गो फॉर द रिवीजन पार्ट एंड वी कैन गो फॉर द सीआईटी अपील पार्ट। उससे पहले एक बात भी ऐड करना चाहूंगा कि एक हमारा प्रोविजन है आपका 271 डबल ए आई थिंक सी है, उसके अंदर हमें इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी मिलता है। अगर हम 30 डेज के अंदर टैक्स जमा करा देते हैं तो हम जाओ से, जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर से इम्यूनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने कोई केस नहीं देखा जिसके अंदर इम्यूनिटी आपको अलाउ की गई है, वो 100% में आपको रिजेक्ट कर देते हैं। बट उस केस में क्या होता है, फिर आप सीआईटी अपील करने के टाइम पार्ट हो चुका होता है बेसिकली। तो अगर हम बात करते हैं अपील की, तो हम
कि हमारे पास क्या क्या मेथड हमारे पास बचते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया, रिवीजन का मेथड बचता है, सीआईटी अपील का मेरा मेथड बचता है। तो प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे किसी भी एक लेमैन को एक असेसमेंट ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसके बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशंस उसको अपनानी चाहिए और किस तरह से उसको आगे फर्दर मूव करना चाहिए। ओवर टू प्रमोद जी। यस यस देखिए, अभी जब से ये फेसलेस हुआ है ना, सो फेसलेस अपील सिस्टम भी 2021 से इनेबल्ड हो गए हैं, जिसको अभी हम पहले सीआईटी अपील बोलते थे, अभी ये नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर हो गया है, NFAC के नाम से हो गया है। तो इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी बढ़ गई है सीसीज के लिए, जो गवर्नमेंट का विजन था कि हैसल फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड ब्ला ब्ला जो भी होने वाला था, बट अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकलॉग भी है। तो केसेस अभी 3-4 इयर्स की बैकलॉग चल रही है, जो केसेस लिस्ट भी नहीं हो पा रहे यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज समथिंग एल्स। सो अभी संगम जी, आपका जो क्वेश्चन है कि अपील से रिलीफ मिलने का, सो असीसीज के पास एक यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बचता है कि वो अपील में जा सकता है, और पहले सबसे पहले ऑर्डर मिलने के बाद उसे वही चेक करना है कि उसमें नेचुरल जस्टिस कंप्लाइड है कि नहीं है, हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली है, कुछ मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है कि नहीं है। इन सारी चीजों को सबसे पहले चेक करना है। अगर उसे कोई मिस्टेक मिलता है दैट इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड जो रेक्टिफाई कराया जा सकता है, सो उसके पास दो ऑप्शन है। वो अपने जाओ को भी अप्रोच कर सकता है और फाओ को भी कर सकता है, दोनों से रेक्टिफिकेशन वो फाइल कर सकता है। सो जाओ के पास राइट्स अवेलेबल नहीं होते, रेडी अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर जाओ चाहे तो फेसलेस से राइट ट्रांसफर करा सकता है। उसके बाद ऐसे मिस्टेक्स वो रेक्टिफाई कर सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाओ को स्टिल आप अप्रोच कर सकते हो, समझा सकते हो। तो वहां से पहले आपको रेक्टिफिकेशंस करेक्ट करा लेने हैं। और उसके अलावा अगर कुछ नेचुरल जस्टिस स्किप हुई है, अगर आपको लगता है, तो उस केस में आप दूसरे रूट में भी जा सकते हो। और थर्ड रूट है, अगर आपके रूटीन इश्यूज हैं या कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में कवर्ड भी रहते हैं कि सीआईटी में रिलीफ मिला हुआ है पास्ट में, या फिर कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स है, मतलब जुरिस्प्रूडेंस है सेम इश्यूज पे, तो उस केस में आपको अपील ही फाइल करनी है नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर में, और वेट करना है जब आपका मैटर लिस्ट होगा तभी आपका कुछ होगा। तो अभी जो लिस्टिंग का है वो भी बहुत बैकलॉग चल रहा है, जिसमें रिसेंटली अभी मार्च मंथ में सीबीडीटी एक ऑर्डर भी निकाला है, जहां पे कुछ थ्रेशोल्ड भी प्रिस्क्राइब किया है, कुछ रेफर्ड केसेस के भी वो लिस्टिंग अभी चालू हो गई है। यस जय जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर। सो इनफैक्ट लास्ट ईयर ई असेसमेंट, ई अपील स्कीम भी आई थी। सो इसके थ्रू उन्होंने जेसीआईटी को पावर दी है। तो जो बैकलॉगिंग चल रही थी अभी वो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया है, बिकॉज जो केसेस है जो कि हमने सीआईटी अपील में अपील फाइल करी थी वो जेसीआईटी टेकअप कर रहे हैं अब। तो कई बार जो सीआईटी अपील के पास केस गया हुआ था वो ट्रांसफर हो रहा है जेसीआईटी को, एंड जेसीआईटी से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो काफी स्पीडी उसमें आ रहे हैं, मतलब काफी जल्दी आ रहे हैं। एंड बहुत जल्दी आ रहे हैं। यस, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी ऑब्वियसली आप अगर नहीं आ रहा है, अगर आपका केस सीआईटी के पास पेंडिंग है, तो ऑफकोर्स आप डाल सकते हैं, अर्ली हेयरिंग पिटीशन डाल सकते हैं, जिसके लिए आप समाधान करके एक ईमेल आईडी आती है, NFAC की ही है, वहां पे भी आप एक अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा उस पर कुछ मैंने देखा नहीं है एक्शन होते हुए, बट हाँ हमारे पास एक प्रोविजन है जहाँ पे SOPs के थ्रू प्रोवाइड करा गया कि आप अर्ली हेयरिंग पिटीशन डाल सकते हैं। जी सर। राइट। ग्रोवर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसके ऊपर, कि जैसे किसी लेमैन को एक ऑर्डर रिसीव होता है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या उसको बेटर वे में करना चाहिए सर, अपने सेफगार्ड को ध्यान में रखते हुए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ग्रोवर साहब प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, दे हैव टू बी प्रॉम्प्ट, मींस रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब तो तुरंत देना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। मींस उसको फिर बहुत मुश्किल होगा आगे जो है ठीक कर पाना। जय, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर, जो संगम सर ने पूछा कि क्या प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे ये है कि 30 डेज का टाइम लिमिट होता है विद इन विच हमें अपील फाइल करनी चाहिए। तो एज सून एज मेरे को जो ऑर्डर आ जाता है, तो मुझे रेक्टिफिकेशन एंड ऑल अदर थिंग्स केप्ट इंटैक्ट, मेरे को वो तो सब कर ही लेना चाहिए। साथ में मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास अपील फाइल करने के लिए जो पीरियड है वो 30 डेज का ही है। उसमें मुझे ग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फॉर्म 35 फाइल कर देना चाहिए। और जो कॉन्डोनेशन ऑफ डीले का ऑप्शन होता है मेरे पास बिफोर फाइलिंग, आई मीन for the filing of appeal before the CIT वो 30 days के beyond if you are having some valid reasons
then वो सब प्रूव करने Right. वो पड़ेंगे बहुत आपको, तभी cumbersome हाँ, process रहता है, हाँ, वो वो बहुत बहुत cumbersome दिक्कत process है, देने agree। वाला। So जी नहीं, जी मीन्स 30 days जो उसके लिए sacrosanct है, one- उसे sacrosanct मान के चलते हुए चलना राइट, बट इसमें मेरा एक सबमिशन है कि अगर आपके पास 154 के इश्यूज है तो अपील में भी उसे जस्ट मेक अ पॉइंट, राइट अपील राइट जो अपील आप बना रहे ग्राउंड्स ऑफ अपील, उसमें एक पॉइंट उसे जरूर बना ले। अगर आपका जरूर 154 मीनवाइल हो जाएगा, सो नेक्स्ट टाइम यू कैन ड्रॉप दैट। सो उस पे हमें बिल्कुल लीवे नहीं लेना चाहिए और उसको भी अपील बनाना चाहिए, बिकॉज रेक्टिफिकेशन कब होगा वो भी हमें पता नहीं होता। राइट। तो जनरली एक अगर मैं इसको होलिस्टिकली देखूं तो अगर कोई आपका ऑर्डर आता है तो अगर कोई रेक्टिफाइबल मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर दीजिए, साथ में अपील भी फाइल कर दीजिए सेम ही मैटर के लिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील आप बना सकते हो उसे, यस, जी, वन ऑफ जी। द टॉप। यस संगम सौरभ जी, जी, सौरभ जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सौरभ जी बस मैं तो यही ऐड करना चाहूंगा कि जनरली हमने जो देखा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगेंस्ट ऑर्डर के बावजूद भी जो एसएससी है ना, वो बिल्कुल लास्ट डे तक अपील फाइल करने का इंतजार करते रहते हैं, या प्रॉपर कंसल्टेंट को ढूंढते रहते हैं, यहाँ से वहां, या सोचते हैं, और वो 25-26वें दिन जाकर के, मतलब हमारे पास जैसे बहुत सारी अपील्स आती हैं, 25वें दिन अपील वो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ जी भाई अब अपील फाइल करनी है। तो मेरा जो भी हमारे इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं आगे यूट्यूब पे भी, अगर किसी को अपील फाइल करनी है, मतलब अगेंस्ट ऑर्डर है, तो सबसे पहले माइंड में आएगा ही कि अपील फाइल करनी है। अपील फाइल करें तो उसके लिए हम लास्ट 25वें दिन तक का इंतजार ना करें, 2-4 दिन में अपना माइंड मेकअप करें, किस कंसल्टेंट से मिलना है, क्या है, कहाँ है, ताकि वो विद इन टाइम, कंसल्टेंट को भी प्रॉपर ऑर्डर को पढ़ना है, समझना है, ग्राउंड्स बनानी है, फैक्ट्स बनाने हैं, नंबर, फिर उसके अलावा ऑनलाइन जो अपील फाइल होती है, फॉर्म 35 फाइल होता है, कई बार पोर्टल की दिक्कत होती है, टेक्निकली वहां पर दिक्कत बन जाती है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें एंड विद इन टाइम हम अपनी प्रोसेस को शुरू कर दें। फुल्ली एग्री विद दिस, परफेक्ट है एकदम। आपने जो चीज बोली है ना, ये हम लाइफ में हमेशा ही जो है वो पीछे दौड़ने की बात करते हैं। मींस व्हाई अननेसेसरीली डू दैट वे, अननेसेसरी, should कभी be इस proper। कंसल्टेंट से मिले, कभी उस कंसल्टेंट हाँ, से मिले, हाँ, और वो अननेसेसरी, और उसके चलते अल्टीमेटली सफर एसएससी नहीं करना है। हमने भी ये देखा करेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में। करेक्ट। सफर एसएससी ने करना है और हाइपरटेंसिव कंसल्टेंट को करना है, यस, क्योंकि वो जब वो केस ले लेता है उसके बाद उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होती है। वो एग्जैक्टली, रात को दिस 3 इज द बजे भी पॉइंट। जाग रहा होता है उसका काम कराने के लिए। ये बात, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जय जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एक स्टे ऑफ डिमांड को लेके। बिल्कुल जैसे हमें सस्पेंड ऑर्डर मिलता है, साथ में 156 का एक डिमांड का नोटिस साथ में मिलता है हमें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें 30 डेज का टाइम दिया होता है कि विदिन 30 डेज अपनी डिमांड जमा कराएं। ये तो डिमांड जमा नहीं कराएंगे तो क्या उसके रेप्लिकेशंस होंगे? अगर हमें स्टे ऑफ डिमांड अप्लाई करना है तो क्या उसका प्रोसीजर है, और क्या मतलब मुझे कितना अमाउंट उसमें जमा करने की रिक्वायरमेंट है? प्लीज इस पे कुछ आप बताइए। जी जी। सो सर, जैसे अभी मतलब मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम अपील भी फाइल करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक नोटिस ऑफ डिमांड आता है, तो हमारे पास 30 डेज का टाइम होता है टू डिपॉजिट द डिमांड, एंड अगर आप वो नहीं करते हैं तो 220 के अंदर आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है और आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। 220 सबसेक्शन 6 में आपको ना एक प्रोविजन दिया जाता है कि आप ईओ के पास अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर स्टे ऑफ डिमांड, एंड ईओ के पास डिस्क्रिशन होता है उसके बाद कि वो आपको स्टे दे या ना दे। एंड स्टे में भी वो आपको 100% स्टे दे सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं कि कुछ एक अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास एक नोटिस ऑफ डिमांड आता है तो हमारा फर्स्ट एक्शन शुड बी फाइलिंग ऑफ अपील, सेकंड शुड बी साथ ही साथ विद इन 30 डेज में ही ये हमको करना है स्टे ऑफ डिमांड का एक एप्लीकेशन फाइल कर देना है बिफोर द जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, या आप अपना जो अगर फेसलेस है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, बट जुरिसडिक्शनल को तो फाइल कर ही देना चाहिए इन केस। उसमें आप जैसे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन 2017 की है, फिर 2016 की, एंड कुछ पुरानी सर्कुलर्स वगैरह हैं जहां पे बोला गया है कि ईओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं टू ग्रांट द स्टे ऑफ डिमांड। ऑल्दो 2017 वाली जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे बोला गया है कि 20% ऑफ द डिमांड आपको पे कर देना पड़ेगा, बट जनरली एज एन एसएससी आप एक बारी के लिए फुल स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमने अपील फाइल करी है, हमारा मैटर कवर्ड है, अगर कोई हमारा पुराना ऑर्डर अपील हमारे फेवर में है तो हम उसका भी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एओ के पास एक हमने अपना पूरा प्रेजेंट किया है केस कि क्यों इसमें डिमांड बनती ही नहीं है, एंड कुछ सर्कुलर्स वगैरह भी हैं जहाँ पे बोला गया है कि एओ कैन प्रोवाइड 100% स्टे अगर आपका केस कोई पुराना डिसाइडेड है इन फेवर और नॉट। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि
कई बार क्या होता है कि हम स्टे ऑफ डिमांड फाइल तो कर देते हैं, जो स्टे के लिए वो बोलता है कि आपको AO can provide stay if your appeal has been filed before the CIT appeal. जो लैंग्वेज है सेक्शन की, वो लैंग्वेज से ये समझ में आता है कि अगर आपकी अपील फाइल है बिफोर द CIT अपील तो आपको स्टे मिल सकता है। बट अगर मैं इंटरनेशनल या फॉरेन केसेस की बात करूं तो वहां पे जनरली हमारी अपील फाइल होती है IT-80 बिकॉज हम DRP रूट अपना लेते हैं। तो वहां पे 226 का जो रोल है ना वो काफी थोड़ा सा सबस्यूम हो जाता है, कम हो जाता है, एंड जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ऑफ AO वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एंड मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें स्टे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सौरभ सर, मतलब ये बात कितना कहना सही है यहाँ पे कि वो उसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर 20% जमा कराने से पहले जनरली स्टे ग्रांट नहीं करते हैं, और अगर वो हमारा स्टे रिजेक्ट कर देते तो उसके बाद क्या हमारा फर्दर स्टेप्स और रेमेडी अवेलेबल है एसएससी के पास कि वो कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है फर्दर सर? डिस्क्रिशनरी पावर जी, एओ के पास डिस्क्रिशनरी, बिकॉज क्या है, जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, नोटिस अंडर सेक्शन 156 पास हो गया, डिमांड नोटिस निकल गया, उसके बाद में डिमांड को तो कलेक्शन की जिम्मेदारी असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाती है, रिकवरी टीम के पास आ जाती है। फर्स्ट राइट असेसिंग ऑफिसर के पास में है कि जो भी हमारी डिमांड है, सेक्शन 220 जो सबसेक्शन 6 की बात है, बेसिकली हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको स्टे ऑफ डिमांड कहते हैं, बट 30 दिन का हमें टाइम मिलता है, और 30 दिन के बाद में अगर हमने डिमांड जमा ना कराई तो असेसिंग ऑफिसर हमें असेसी इन डिफॉल्ट मान लेगा। तो वहां पर 220 सबसेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है कि हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास कि हमें इस पर्टिकुलर केस में असेसी इन डिफॉल्ट ना माना जाए, और हमारा केस मेरिट पर स्ट्रांग है, हमारा केस मेरिट पर कोई डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में हमें असेसी इन डिफॉल्ट ना माना जाए और हमें पूरी की पूरी स्टे दिया जाए। बट चूंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कहता नहीं जी मैं तो 50% पे स्टे दूंगा, हम कहते हैं जी नहीं, हमें तो हमारा केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन बहुत सारे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए सीबीडीटी ने एक वेल नोन एक सर्कुलर निकाल दिया बहुत सारी प्रोसीजर्स के बाद में। अब सर्कुलर फाइनल ये आ गया है कि 20% अगर एसएससी जमा करा देता है अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का, देन असेसिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर डिमांड को स्टे कर देगा टिल द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द अपील। सीआईटी अपील, ये जो असेसिंग ऑफिसर के पास में पावर है, सीआईटी अपील है, आईटीटी को मैटर करेगा तो वो पावर भी आईटीटी को दी जाएगी। अब मैंने नहीं जमा कराया, प्रैक्टिकली 99.9999% केसेस के अंदर अगर हम 20% की असेसिंग ऑफिसर 20% पर ही अड़ा रहता है, हम 18% भी जमा कराएंगे तो भी वो हमें स्टे नहीं देता। नाउ अब असेसिंग ऑफिसर ने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया मुझे तो 20% चाहिए। अगर हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो हमारे पास में एक सेकंड रेमेडी बनती है, दैट इज एप्लीकेशन पिटीशन बिफोर प्रिंसिपल सीआईटी। जो हमारे जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल सीआईटी है, जो कि हमारे केसेस में अभी हम 3-4 केसेस में फाइट भी कर रहे हैं यहीं पर ही दिल्ली में, तो हमारे असेसिंग ऑफिसर ने जो जाओ है उसने रिजेक्ट कर दिया हमारी पिटीशन। नाउ वी आर बिफोर द प्रिंसिपल सीआईटी। हम वहां पर फिर हम अपनी डिटेल्ड पिटीशन देते हैं कि भाई असेसिंग ऑफिसर को हमने फाइल की थी, उन्होंने इस ग्राउंड पर हमारा केस रिजेक्ट किया है, और हमारा केस मेरिट पर स्ट्रांग है, मेरिट पर हमारा केस को सुना जाए एंड इसके ऊपर। तो वहां पर प्रिंसिपल सीआईटी को पावर है, पावर तो इनफैक्ट असेसिंग ऑफिसर को भी है, बट प्रिंसिपल सीआईटी को पावर है जो 20% की जगह 10% में, 5% में, 15% में, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस, वो फिर हमें 5% 10% कह के कि हाँ जी ठीक है आप 10% जमा करा दीजिए और आपका केस हम स्टे कर देते हैं। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल सीआईटी 100% मेरिट ऑफ द केस देखते हैं कि आपके केस में प्राइमा फेसी कोई गलत हो गया है, कोई फैक्चुअली कोई चीज गलत हुई है जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट में डिमांड आई है, तभी वो हमें उसका रिलीफ देते हैं। अदरवाइज प्रिंसिपल सीआईटी भी हमें कोई उस पॉइंट पे कोई रिलीफ नहीं देते हैं। और अगर प्रिंसिपल सीआईटी से भी हमें रिलीफ नहीं मिलता है देन उस केस में फिर हमें डिमांड जमा ही करानी पड़ेगी, अदरवाइज तो रिकवरी प्रोसीजर शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले बैंक अटैच, सेकंड डेटर्स रिकवरी एंड थर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑक्शन। ये जनरली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसीजर्स। ओके,
थैंक यू सौरभ जी। सर मैंने इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा कि क्या अगर प्रिंसिपल सीआईटी हमारी स्टे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते, डू वी हैव अ राइट टू गो फर्दर टू आईटीएटी टू गेट ए स्टे? अगर मेरा अभी मैटर सीआईटी अपील पेंडिंग, क्या मैं आईटीएटी जा सकता हूँ स्टे लेने के लिए? मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं है। अच्छा, नहीं, वो ऑर्डर जो होता है ना, एज पर माय नॉलेज, वो ऑर्डर अपीलेबल होता है। स्टे रिजेक्शन का अगर ऑर्डर आया ना, तो ऑर्डर अपीलेबल है वो। लेकिन अगर प्रिंसिपल, पर मुझे एज पर माई नॉलेज ऑल्सो सेक्शन 246 के अंदर और उसमें अपीलेबल ऑर्डर नहीं है सर, जो स्टे का ऑर्डर होता है। बट सर मेरा जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है, अगर मेरा मैटर आईटीएटी में पेंडिंग है अगर, तो आई कैन गो टू द फाइल एप्लीकेशन टू आईटीएटी फॉर गिविंग मी स्टे फॉर आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर मेरा सीआईटी मैटर पेंडिंग है, नहीं, सीआईटी से एनीवे, अगर प्रिंसिपल सीआईटी का ऑर्डर है तो आपको आईटीएटी ही जाना होगा। संगम जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हम जो ये प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर या प्रिंसिपल सीआईटी, ये तब तक ही है जब तक कि मेरी अपील सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है। हाँ जी, द मोमेंट माई अपील क्रॉसेस द लेवल ऑफ सीआईटी अपील और मेरी अपील आईटीएटी में पहुंच गई है, तो फिर ये वाली तो ये यहाँ की तो स्टे प्रोसीजर ही खत्म हो गई। अल्टीमेटली फिर अथॉरिटी ही आईटीएटी के पास है। फिर मुझे आईटीएटी में एक सेपरेट पिटीशन फाइल करनी है फॉर स्टे ऑफ डिमांड, एंड आईटीएटी को अगर लगता है कि हमें स्टे मिलना चाहिए तो फिर वहां पे आईटीएटी स्टे, तो वहां पर तो जो ये हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं सीआईटी अपील तक फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके ओके। ये पवन जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल सही, जो मैं वही सौरभ जी की बात को ऐड कर रहा हूँ कि आईटीएटी में जब केस जाता है तो स्टे का भी आपको वहीं पे ही फाइल करना पड़ता है, तो स्टे का भी आपको पहले मिल जाता है, उसके बाद केस आपका चलता रहता है। बिल्कुल। संदीप जी, कितना टाइम है हमारे पास सर? अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। संदीप जी देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ऐसा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग है सर। इस पे आप घंटों Exactly. दिनों महीनों आप डेलिब्रेट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये इतना डेवलपिंग टॉपिक है कि आप जितना इस पे डिस्कस करेंगे उतनी नई चीजें निकल के आएंगी और हर आदमी का लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा। मतलब आई कैन टेल यू सो मच श्योरिटी, जैसे एक इनकम टैक्स एक्ट है सेक्शन 154, हम जितनी बार पढ़ते हैं अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आती है सर उसकी। 147 स्पेशली बार-बार उसको पढ़ते रहते हैं, अलग इंटरप्रिटेशन निकलती है। हर आदमी उसको अलग तरीके से पढ़ाता है, पढ़वाता है और लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये भी बेसिकली। बिल्कुल, एक सेक्शन के लिए भी ना मुझे भी लगता है 18 साल कम है। इंटरेस्टिंग केसेस होंगे वो सारे के सारे आप जो है उनके जो लर्निंग्स है वो यहाँ पर निचोड़ के रखना चाहेंगे ही चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सेक्शन के लिए मुझे भी लगता है 20 साल भी कम है। मतलब मुझे भी कभी फील होता है यार ये तो नई चीज निकल के आ गई। तो बिल्कुल इनकम टैक्स वैसा ही है, जितना भी जानो कम है। और तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अपने सेशन को हम कंक्लूड करेंगे आज के लिए, फिर दोबारा किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इनकम टैक्स के। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास पहले 147 148 हुआ करता था, वहां मैक्सिमम इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर मैक्सिमम 6 साल तक के केस हम खोल पाते थे। जिस साल हमारी सर्च या सीजर हुई उस साल हम 143 में असेसमेंट करते थे और उससे 5 साल पहले वाले केस है 147 में उसके असेसमेंट हम करते थे। बट लेकिन जैसे कि 147 विद 148 उसमें अमेंडमेंट आ गई है, 4 ईयर और 6 ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है आपका 3 ईयर का और 10 ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो क्या मैं ये बात कहना सही होगा कि अब जिस सर्च के केस में असेसिंग ऑफिसर 10 साल तक के केस आपके 148 में खोल सकता है अगर आपकी इनकम स्केपिंग 50 लाख रुपए से ज्यादा है? तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मैं आप चारों से इस पे राय चाहूंगा और उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। हम शुरुआत करते हैं ग्रोवर सर से। When you say controversial, कंट्रोवर्सी का क्या मतलब हुआ? मैं थोड़ा कम समझा हूँ। अच्छा सर, कंट्रोवर्सी का मतलब ये है सर, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन को बताया कि अब कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि हम 147 के अंदर 10 साल तक के केस खोल सकते हैं सर्च एंड सीजर के केस में अगर मेरी 50 लाख रुपए से 50 लाख से ऊपर की इनकम स्केपिंग है अगर। तो क्या ये बात सही है? मतलब 147 में तो टाइम लिमिट भरने से सर्च और सीजर वाले केस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स की पावर दे दी गई है असेसिंग ऑफिसर को? ये सर क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। बेसिकली क्योंकि उन्होंने एक साथ में इसकी वैल्यू कैपिंग भी कर दी है, तो उस केस में जो है वो मेरिट ऑफ द केस को देखते हुए उन्होंने साल भी बढ़ा दिए हैं कि अगर जो इवेजन है वो कहीं हो सकता है लंबे पीरियड के लिए भी हम ढूंढ के देख ले कहीं है तो नहीं है। सो ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई वो देख के तो मुझे लगा कि हाँ इट्स लाइक फाइन, इट्स ओके।
but how practically we guys are facing it as professionals, that only Yes. you can answer. Yes. Jaya, please, आपका व्यू पॉइंट. सर इसमें अगेन मिक्स्ड व्यूज आ सकते हैं कि 10 years लेना चाहिए या 6 year लेना चाहिए. मेरे हिसाब से जो आपका मटेरियल सीज्ड है ड्यूरिंग सर्च, उसके लिए तो आई थिंक हमें 6 years की ही कैपिंग रखनी चाहिए. एंड जो आपका अदर जो अभी कोई अगर जो इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग सर्च नहीं मिली है बट और कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कुछ एडिशन करना चाहता है, तो आई थिंक उसके लिए 10 years वाली लिमिट वो अप्लाई कर सकते हैं. बट अगेन द पावर्स ऑफ डिपार्टमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन, बट हाँ हम उसको चैलेंज तो कर ही सकते हैं. ओके, थैंक यू. ओवर टू प्रमोद जी. प्रमोद सर. यस, ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट था ना, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को तो बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, राइट. पहले के कंपैरिजन में बहुत बड़ा सी चेंज था ये. सो फर्स्ट में मतलब सर्च सीजर की बात नहीं भी करें तो भी असेसिंग ऑफिसर के पास बहुत पावर है. वो कुछ भी करके आपका केस ओपन कर सकते हैं. और 10 साल का पीरियड देखिए डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं है. कभी भी सर्च सीजर वाले केसेस में तो वो खोल ही सकते हैं. तो इसमें मेरा भी मिक्स व्यू है. मतलब ये जैसा भी मतलब असेसिस लेना चाहे, अगर आप साफ सुथरा अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप कहीं आ गए तो फिर लंबा है. कभी इवन 10 साल के बाद भी किसी ना किसी सेक्शन में ओपन कर सकता है इनकम टैक्स. ओके, तो सौरभ जी, से आपको 50 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट है सर, तो मतलब इट्स नॉट अ बिग अमाउंट. तो क्या मतलब कितना जस्टिफाइड और क्या पावर है सर यहाँ पे 10-10 years की? और तो सौरभ जी. सर जो रेड 1/4/2021 के बाद हुई है, हाँ जी, 1/4/2021 के बाद वाली जो रेड है वहां पर सेक्शन 140, बिकॉज सेक्शन 132 में रेड होती है और उसके बाद उसकी सारी की सारी 1/4/2021 के बाद में जो असेसमेंट है वो रेड के असेसमेंट की पावर दे दी है सेक्शन 147 टू सेक्शन 147, 148, 149. 149 इज वेरी वेरी क्लियर कि जहां पर 50 लाख रुपए से ज्यादा का अगर टैक्स इनकम एस्केपमेंट आ रहा है तो उसमें 10 साल तक की पावर है. अभी जो एक्ट प्रेजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या हो रहा है कि 149 में एक प्रोवाइजो भी लिखा हुआ है, जो कि जिसकी वजह से आप कंट्रोवर्सी की, जो मुझे लग रहा है शायद कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, कि एज ऑन टुडे अगर मैं बात करता हूं तो 10 साल पहले का क्या मैं केस खोल सकता हूं या नहीं खोल सकता हूं. तो वहां पर असेसमेंट है यार 14-15 से पहले के केसेस खोलने में दिक्कत है अभी, क्योंकि वो 10 साल की लिमिट में और 6 साल की लिमिट में फॉल कर रहे हैं. उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है. उस लेट होप सो कि हाँ जी वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद में वो मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा. बट हाँ, अगर 149 की बात करता हूँ ना, 149 इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर जो रेड 1/4/2021 के बाद हुई है और वहां पर आपका इनकम एस्केपमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का है तो 10 साल तक की उनके पास टाइम लिमिट्स आ जाए. ओके. सो सौरभ, आपको याद होगा जब ये प्रोविजन आया फाइनेंस एक्ट के थ्रू, तो उस समय हमारी एफएमएन ने कहा था कि मैंने मतलब जो पहले 4 साल था उसको 3 साल कर दिया. मतलब इस बात को बड़ी एप्रिसिएशन के साथ कहा गया था. बट लेकिन वो इनडायरेक्टली एसएससीज के लिए तो बहुत नेगेटिव हो गया, जो 6 को 10 साल भी कर दिया गया बेसिकली एक तरह से. मतलब बहुत यूज पावर कह सकते हैं इट मे बी. उस समय जो फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का अपना स्टेटमेंट है, वो उस समय जो भी उन्होंने अपना माइंड सेट करके, क्योंकि अगर आप उस पॉइंट को देखें तो जो 1 अप्रैल 2021 में पहली बार जो एंटायर लॉ चेंज हुआ रीअसेसमेंट का, वो अगले साल में फिर दोबारा उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए. उसके बाद में फिर दोबारा एवरी ईयर, जबकि बड़े सोच समझ के वो लॉ बनाया गया था. पिछले 25-30 साल का लॉ चेंज किया गया था और बड़े सोच समझ करके नया लॉ पास हुआ. उसके बावजूद भी एवरी ईयर चेंजेस हो रहे हैं. तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय क्या बोला और आज की सिचुएशन क्या है. मेरा हमेशा मानना यह है कि जो मेरा हमेशा मानना है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही बात बोलता हूँ कि भाई लॉ जो है उसको एज इट इज आप फॉलो करेंगे तो शायद लॉ से लड़ भी पाएंगे और सुकून में भी रहेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये हमारे अगेंस्ट हो गया. उसके लिए तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं हाथ आना. तो हमें तो लॉ को समझते हुए चलना है. appreciate and agree with what you are saying, क्योंकि जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में क्या सोच के भी क्या करेंगे. एग्जैक्टली, वो तो अननेसेसरी हमारे माइंड को बर्डन ही करेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा. बिल्कुल. सौरभ जी से इसलिए पूछा कि सौरभ जी इतनी पावर रखते हैं कि वो एक्ट को अमेंड भी करा सकते हैं एक्चुअली ना सर. सर ऐसा नहीं है. ये तो आपकी गुडनेस है. ऐसा
उनके ऐसा- पास सीबीडी डिपार्टमेंट तक जाए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तक जाए, वो नहीं चीज नहीं का ऐसा नहीं है, ये तो आपका हमारे प्रति प्यार है, ऐसा नहीं है कुछ भी। So, मैं तो एक छोटा सा कंसल्टेंट हूँ और लॉ का स्टूडेंट हूँ, जो अपना पढ़ाई करते रहते हैं, वो ये चलती रहती है, कोई ऐसा नहीं है। So friends, I think we are 8:30 now. So time over हो चुका है. तो I want to express my sincere thanks to firstly Sandeep ji for as a founder organizing this interactive panel discussion. So friend, many times you see there are lots of webinars, seminars are going on at lots of places, but there is no like a group discussion, because whatever we have done here, we have took the opinion of all. We took some questions also, and opinion on of all the participant on one particular topic, or panelists on one particular point. So that make me more realistic, and we discuss, I think whatever we have discussed, everything is practical part. We never touch any theoretical part. So this is the beauty of this kind of panel discussion. So kindly accept a sincere thanks from team INCOC for joining us in this late evening. And the reason for making this program late evening, that many people are those who are coming from the office, they can reach their home, settle down, thereafter they can attend this like a prime time. So you can say this is a prime time of INCOC. Over to Sandeep ji for formal vote of thanks. थैंक यू सर, आज के पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोगों को यही फील होता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा सब्जेक्ट आज के डेट में बन गया है कि प्रोफेशनल भी परेशान हैं, एक कंपनी के साथ साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ साथ। तो हमें लगता है कि हर वीक एक सेशन पैनल डिस्कशन होना चाहिए। 15 डेज में एक डायरेक्ट टैक्स के ऊपर और 15 डेज में एक इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो इस वीक में जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर किया, तो नेक्स्ट वीक में इनडायरेक्ट टैक्स, फिर 13 को हम लोग डायरेक्ट टैक्स के ऊपर पैनल डिस्कशन करने का काम करेंगे। और सैटरडे संडे इसलिए सेलेक्ट किया गया कि मैक्सिमम ऑफिसेज बंद होते हैं और लोग आराम से शाम को 1.5 घंटे का टाइम निकाल कर दे सकते हैं, ताकि वो करंट सिचुएशन को समझ पाए। और आप लोग यदि नहीं आएंगे तो इस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों का जुड़े रहना जरूरी है, और टाइम टू टाइम हम लोग कनेक्ट होके ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स को, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर को और सोसाइटी को कुछ ना कुछ एज ए टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड उनको थोड़ा बर्डन को कम करने का काम करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Sandeep ji. Thank you, all the panelists. Thank you. It was Thank great you all. learning. Thank you. Thank you, sir. Thank you.